Good morning, all. Today we have this class on finalization of accounts and financial statements with reference to GST perspective. So many times we see that in the GST, various financial transactions or various, you can say, the line items of the financial statements are different than the line items which are reported in the profit and loss account or in the financial statement. So basically, and then there are various other issues. So while finalizing the financial statement, what we should take care of is will be discussed today by our speakers, Apoorva and Priyanshi. So who will discuss first? Apoorva. So Apoorva, you must come. And I would basically request Apoorva that she should discuss in such a way that not only who has experience in the GST audit, but those who are new to the subject and particularly this batch would also understand that what are the relevant provisions of the law as well as how the same has to be dealt with while preparing the financial statement. So you have to come to the level of all these participants. The screen must be audible to all, must be visible to all. Good morning, everyone. Today, I, Apoorva Gupta and Priyanshi will take you through today's Saturday class on the topic Finalization of Accounts with GST Perspective. On reading the title of today's topic, हम सब ने सोचा होगा कि इसमें बहुत सारी terms use हो रही हैं. First of all, finalization of accounts. Second, accounts as in financial statements. Then a GST perspective, and the topic as a whole, finalization of accounts with GST perspective. तो हम पहले ये terms discuss करेंगे. So first is finalization of accounts. Finalization of accounts is basically a process of controlling and planning of activities within a business entity so that the financial statements of the business entity is prepared. ये process के कुछ objectives हैं. First of all, objective ये है कि ये financial statements जो है ये timely prepare होने चाहिए. Second, ये हम financial statements prepare कर रहे हैं ताकि हम various statutes से comply कर सकें. And lastly and importantly, that जो financial statements prepare हुए हैं वो एक true and fair to represent कर रहे हैं entity की business का. Second is financial statements. तो financial statements को define कर हम ऐसे कर सकते हैं formal written records of the financial activities and position of the business entities that will give us the status of profitability of the firm and the financial position of the firm. अब हम सबको ये पता है financial statement में balance sheet और P&L account तो होता ही है. बट हम कैश फ्लो स्टेटमेंट भी प्रिपेयर करते हैं. हाउएवर 3 कंपनीज को एग्जेम्पशन दी हुई है. कोई बताना चाहेगा यहाँ पे 3 कंपनीज कौन सी है? थ्री कंपनीज इन एग्जेम्पशन मिली हुई है, वो है ओपीसी कंपनी, डोरमेंट कंपनी एंड स्मॉल कंपनी. फोर्थ इज स्टेटमेंट ऑफ चेंजेस इन इक्विटी. ये वो कंपनीज प्रिपेयर करती है जो इंडिया फॉलो कर रही है. Third is notes to financial statement. हम सब ये जानते हैं कि notes to financial statement are a part of financial statement, पर हमने कैसे इंटरप्रेट करा
ऐसे एंड एएस से रेफरेंस देते हुए मैं आपको एक्सप्लेन करूँ। So first is paragraph 8 of SA 700, forming an opinion and reporting of financial statements. Reference to financial statements in this essay means a complete set of journal purpose financial statements, including the related notes. The related notes ordinarily comprise a summary of significant accounting policies and other explanatory information and any other information required to be included as part of financial statement by the laws and regulations governing the entity. ये ऐसे इस पैराग्राफ की रेफरेंस से हम ये सिंपली समझ सकते हैं कि जो नोट्स टू फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स होंगे वो भी मेरे पार्ट होंगे फाइनेंशियल स्टेटमेंट के। सेकंड रेफरेंसेस है ये प्रीफेस टू अकाउंटिंग स्टैंडर्ड से, ये दो पैराग्राफ की रेफरेंस दिए मैंने यहाँ पे। पैरा 3.4, the term general purpose financial statement includes balance sheet, statement of profit and loss, a cash flow statement wherever applicable, and statements of explanatory notes which form part thereof, issued for the use of various stakeholders, governments, and their agency and the public. References to the financial statement in this preface and in standards issued from time to time will be construed to refer to general purpose financial statements. तो ये पैराग्राफ में ये समझ में आया कि general purpose financial statement includes notes to financial statement. Then the last reference is para 6.1. Accounting standards for mandatory from the respective date mentioned in the accounting standards. The mandatory status of accounting standard implies that while discharging their attached function, it will be duty of the members of the institute to examine whether the accounting standard is complied within the presentation of financial statements covered by their audit. तो ये पैराग्राफ स्टेट करता है कि एज एन ऑडिटर इट इज आवर रिस्पॉन्सिबिलिटी दैट these functions that these notes to accounts form part of the financial statement, और कोई भी डेविएशन होता है तो वो हमारी जिम्मेदारी है कि हम उस पर रिपोर्ट करें। Since major decisions are taken by stakeholders based on the financial statements of the entity, तो इस वजह से फाइनेंशियल स्टेटमेंट शुड प्रेजेंट अ ट्रू एंड फेयर व्यू ऑफ द बिजनेस ऑपरेशंस ऑफ द एंटिटी। नेक्स्ट जो हमारा आज का टॉपिक है, इम्पैक्ट ऑफ जीएसटी लॉ ऑन फाइनलाइजेशन ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट। तो क्वेश्चन ये है कि हम क्यों देखें ऑडिट करते टाइम हम जीएसटी पर्सपेक्टिव क्यों रखें। तो ये हमें ऐसा इसलिए करना चाहिए क्योंकि हमने पढ़ा है कि द प्राइमरी ऑब्जेक्टिव ऑफ द ऑडिटर इज टू फर्स्ट obtain reasonable assurance whether the financial statements are free from material misstatement, and second that they give a true and fair view of the business entities. Hence ये to achieve ये objective achieve करने के लिए an auditor should also check for the compliances from with GST law and regulations. तो जीएसटी लॉ एंड रेगुलेशन में क्या कहता है कि एवरी रजिस्टर्ड पर्सन other than input service distributor, a casual taxable person, non-resident taxable person, or person paying tax under 51 or section 52 shall furnish a annual return and a self-certified reconciliation statement with the audited financial statement for every year electronically. तो दो फॉर्म भरते हैं हम फॉर द एनुअल रिटर्न के लिए फॉर्म जीएसटी 9 जाता है, एंड सेल्फ रिकंसिलिएशन स्टेटमेंट के लिए
इस करेगी और अपने फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स सबमिट करा देगी, देन फिर वो स्टार्ट करेगी अपना जीएसटी ऑडिट या फॉर्म भरने का प्रोसेस। तो इससे क्या इशू हो सकता है कि अगर मुझे जीएसटी ऑडिट करते टाइम कोई ऐसा मटेरियल मिसस्टेटमेंट मिलता है मेरे फाइनेंस बुक्स ऑफ अकाउंट्स में, तब तो फिर मेरा जो फाइनेंशियल स्टेटमेंट है वो ट्रू एंड फेयर व्यू रिप्रेजेंट नहीं करेंगे। और प्रेजेंटली ऐसा कोई भी ऑप्शन नहीं है कि मैं मेरे फाइनेंशियल अकाउंट पे रिवाइज कर सकूं। एक इलस्ट्रेटिव लिस्ट दी गई है यहाँ पे रिकंसिलिएशन की, जो हम बना सकते हैं बीइंग एन ऑडिटर ड्यूरिंग आवर स्टैट ऑडिट प्रोसेस। हम इलेक्ट्रॉनिक क्रेडिट लेजर को आईटीसी से मिला सकते हैं जो मेरी बुक्स में शो हो रही है, इलेक्ट्रॉनिक कैश लेजर को मेरे कैश पे। So, will you explain that what is electronic credit ledger? इलेक्ट्रॉनिक क्रेडिट लेजर इज बेसिकली जहाँ पे हम जैसे परचेज करते हैं तो उसमें हम इनपुट लेते हैं, तो वो इनपुट मेरे जीएसटी पोर्टल पे एक इलेक्ट्रॉनिक क्रेडिट लेजर में शो होती है। तो जो जीएसटी पोर्टल पे मेरा उस लेजर में बैलेंस शो हो रहा है वो मेरी बुक से मैच करना चाहिए। देयर इज इलेक्ट्रॉनिक कैश लेजर, ये भी वही होता है, मेरी कैश पे करा है फॉर द फॉर पेमेंट ऑफ माई लाइबिलिटी ऑफ टैक्स, वो मेरे बुक से मैच होना चाहिए एज एन कि इतना कैश मैंने अभी तक पे कर दिया है। जीएसटी पेड इन कैश इन मार्च रिटर्न विद पेबल एज पर बुक। तो जीएसटी, अब हम मार्च का जीएसटी तो अप्रैल में पे करेंगे, तो अप्रैल में जब मैं वो पे करूंगी तब मैं चेक करूंगी जितना मैंने पेबल मेरी बुक्स में खड़ा किया था वो उससे मैच तो कर रहा है। नेक्स्ट इज रिफंड क्लेम इन जीएसटी पोर्टल। जीएसटी पोर्टल में हम रिफंड क्लेम करेंगे फॉर द इनपुट टैक्स क्रेडिट, वो ही रिफंडेबल मेरी बुक्स में खड़ा होना चाहिए। नेक्स्ट इज रिफंड रिजेक्टेड इन जीएसटी पोर्टल विद रेट्स एंड टैक्सेस एंड बुक। टर्नओवर एंड आउटपुट लाइबिलिटी भी हम मैच कराएंगे हमारी जीएसटी रेट से, और जो मेरी जीएसटी पोर्टल पे मेरा जितना शो हो रहा है लाइबिलिटी टू बी पेड। आईटीसी क्लेम्ड इन जीएसटी रिटर्न एंड इन बुक्स। आईटीसी रिवर्स जो हुई है, जो मेरे को फॉर्म मेरी जीएसटीआर 3B में देखने को मिलती है, वो मेरी बुक से मैच होनी चाहिए। इनएलिजिबल आईटीसी भी मैं फॉर्म जीएसटीआर 3B में मुझे दिखती है, वो मेरी बुक से मैच होनी चाहिए। कोई भी मेरा प्रीवियस ईयर का एडजस्टमेंट जो मैं सब्सिक्वेंट ईयर्स में कर रही हूँ वो भी मेरे को चेक करना चाहिए और रिकंसाइल करना चाहिए कि इनऑल मेरी जीएसटी लाइबिलिटी और इनपुट मैच कर रहा है। देन इंटरनल ऑडिटर्स, मतलब जहाँ पे भी इंटरनल ऑडिट एप्लीकेबल होती है वहाँ पे अगर इंटरनल ऑडिटर्स ने कुछ रिलेटेड टू जीएसटी मैटर्स अपने ओपिनियंस और ऑब्जर्वेशंस रखे हैं, वो मेरे को भी एज एन ऑडिटर मुझे भी कंसिडर करने चाहिए। नेक्स्ट इज ग्रॉस टर्नओवर इन बुक्स टू बी रिकंसाइल्ड विद द फॉर्म जीएसटीआर 1। ग्रॉस टर्नओवर बुक्स हम ईवे बिल्स भी बनाते हैं तो उससे भी रिकंसाइल कर सकते हैं। देन हमारा हम फॉर्म जीएसटीआर 2A को जीएसटीआर 3B से रिकंसाइल करेंगे। जीएसटीआर 3B हम खुद फाइल करते हैं, 2A ऑटो कंप्यूट होकर आती है। इस वजह से जीएसटीआर 3B में जो आउटपुट और मेरी इनपुट की लाइबिलिटी दिख रही है वो जरूरी है कि मैं मैच करूँ, क्योंकि जीएसटीआर 2A और 3B मैच करने से मुझे ये पता चल जाएगा कि मैंने कोई अगर मेरा इनवॉइसेस रह गए हैं अपलोड होने से, ताकि वो फिर मैं अमेंडमेंट टेबल में जाके उसे अमेंड करूँ। जीएसटीआर 2A और वर्सेस बुक्स, ये ये रिकंसिलिएशन से मुझे ये पता चल जाएगा कोई अगर एक्स्ट्रा इनवॉइस वहाँ पे डल गया है या फिर गलत फिगर से डल गया है तो वो मैं आके अमेंडमेंट कर दूँ। प्रॉपर क्रेडिट नोट्स और डेबिट नोट्स का ट्रीटमेंट हुआ हुआ मेरी बुक में, और सेम मेरी मैं आपको एक मिनट रोकता हूँ, होल्ड करिए। जीएसटीआर 2A जो होता है ना, जीएसटीआर 2A आप जो जीएसटीआर 1 कोई भरता है सप्लायर, जीएसटीआर 2A इज बेसिकली रिफ्लेक्शन ऑफ इनवर्ड सप्लाई फॉर ए रिसिपिएंट। मतलब आप जो इनपुट टैक्स क्रेडिट लेते हैं, जो आपका सप्लायर ने इनवॉइसेज आपके ऊपर रेज किए हैं, वो सारे इनवॉइस आपके जीएसटीआर 2A में रिफ्लेक्ट होते हैं। यू कांट चेंज इट। 2A सिर्फ इस पर्पज से होता है कि आप जब क्रेडिट लेना चाहते हैं, व्हेन यू आर गोइंग टू टेक इनपुट टैक्स क्रेडिट, यू कैन चेक whether your input tax credit availed by you has been reported, related invoice has been reported by your supplier or not। ये आपका आउटवर्ड सप्लाई नहीं है जिसको आप अमेंडमेंट टेबल में जाके चेंज करेंगे। अमेंडमेंट टेबल से जो चेंज की जाती है वो आपके आउटवर्ड सप्लाई के इनवॉइसेज है, जिसमें यदि आपने कोई मिस्टेक किया है तो आप ठीक कर सकते हैं। ओके, जीएसटीआर 2A इज योर इनवर्ड सप्लाई रिफ्लेक्शन। जो आप आईटीसी क्लेम कर रहे हैं वो बेसिकली आपके सप्लायर ने रिपोर्ट किया या नहीं किया, ठीक है, इसलिए हम उसको क्रॉस करते हैं
कि हमने जो आईटीसी क्लेम की है वो बेसिकली मेरे सप्लायर ने उसका टैक्स पे किया है और उसने रिपोर्ट किया है. दैट इज 2A. ओके, प्लीज कैरी ऑन. Next is the impact of GST law on finalization of financial statement. GST law is the underlying principle of GST law is self-assessment. It is the responsibility of every registered person to self-evaluate and self-comply with the various requirements of the GST law. तो टैक्स पेयर की अब क्या क्या रिस्पॉन्सिबिलिटी है? फर्स्टली, आउटपुट सप्लाई ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज पे test of scope of supply, whether it is whether under the scope of GST Act or not, applicable अगर कोई exemptions दी हुई है कि इस पे GST अप्लाई नहीं होगा. Next is determining the point of taxation in terms of time of supply. Time of supply basically कि हम कब consider करेंगे कि वो supply हो गई है. Next is determining the place of supply of goods and services to pay the tax correctly. Either it would be CGST or SGST or IGST. Next is the correct classification of goods and services as per the HSN and SAC code. HSN is for goods and SAC is for services. Applying the correct rate of GST tax, accounting for TDS and TCS, and complying with the various due dates of furnishing these returns and paying taxes. Next is import supply of goods and services. Test eligibility for claiming ITC and reversing it if it is ineligible. अगर हमारे पास कोई ऐसी ITC को ineligible है, then we have to reverse it. Discharge GST liability on certain goods and services on reverse charge mechanism. Reverse ITC for non-payment to vendors within stipulated time, which is 180 days में अगर हमने पेमेंट नहीं करा तो हमें फिर वो ITC रिवर्स करनी पड़ेगी. और set of provisions, set of ITC against liability and pay the balance by cash. मतलब हमारे पास कोई आउटपुट लाइबिलिटी पड़ी है और इनपुट पड़ी है तो हम सेट ऑफ के प्रोविजन अप्लाई करेंगे उस पर, फिर सेट ऑफ करेंगे. GST to be GST paid under RCM can be also used for set of GST paid under RCM to be discharged by cash or payment of interest, late fee and penalties in certain cases wherever applicable. तो रिकंसिलेशन स्टेटमेंट अंडर जीएसटी एक्ट, जो मैं अभी जीएसटी एंड 9 फॉर्म जीएसटी एंड 9 की अपन बात कर रहे थे, इस वन विद सप्लाई दी वैल्यू ऑफ सप्लाई जो एनुअल रिटर्न में हमने डिक्लेयर करी है विद द ऑडिटेड फाइनेंशियल स्टेटमेंट. तो इसमें 3 रिकंसिलेशन बनती है. रिकंसिलेशन ऑफ टर्नओवर एज डिक्लेयर्ड इन द ऑडिटेड फाइनेंशियल स्टेटमेंट versus turnover declared in the annual return, reconciliation of the total amount of tax paid and the reconciliation of input tax credit जो हम claim कर रहे हैं. ये इसका ऑब्जेक्टिव ये है कि तो ये जब अपन बात कर रहे हैं कि रिकंसिलिएशन ऑफ एनुअल टर्नओवर जो है आपका जीएसटीआर में अलग हो सकता है और आपका फाइनेंशियल स्टेटमेंट से अलग हो सकता है. तो इसके रीजंस क्या है, क्यों अलग हो सकता है? इसका रीजन यही है कि जीएसटी में कुछ टैक्सेबल सप्लाईज है, कुछ एग्जेम्प्ट सप्लाईज है, बट जब हम फाइनेंशियल स्टेटमेंट में अपनी सेल्स और रेवेन्यू फॉर ऑपरेशन बुक करेंगे तब हम ये क्लासिफिकेशन नहीं करते कि वेदर दे आर एग्जेम्प्टेड फ्रॉम जीएसटी और नॉट. तो ये एक मेजर रीजन है कि वहाँ पे ये डिफरेंसेस हो सकते हैं. कभी ये भी हो सकता है, और जैसे मान लीजिए कि रियल एस्टेट बिजनेस है तो वहां पे आपका टर्नओवर जो है वो इंडियन अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स या अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स के हिसाब से परसेंटेज ऑफ कंप्लीशन मेथड के बेसिस पे चलता है. जबकि यहाँ पे आपका टर्नओवर अगर आपने एडवांस पहले रिसीव कर लिया तो उसके बेसिस पे भी चलता है. इंडेस 115 में अगर अपन बात करते हैं तो वहां पे आप जब अपना टर्नओवर अकाउंट फॉर करते हो तो जो आपका एक्सपेक्टेड डिस्काउंट है उस एक्सपेक्टेड डिस्काउंट को भी आप ये मानते हो कि इट इज नॉट पार्ट ऑफ द टर्नओवर. आपका सेल्स जो है वो कंपैरेटिवली एक लोअर अमाउंट पे रिकॉग्नाइज हो रहा है. जबकि जब आप उसको इनवॉइस करते हो टू द कस्टमर तो आप उसको जब उस वक्त जितने अमाउंट पे इनवॉइस कर रहे होते हैं तो उस अमाउंट पे कर रहे होते हैं तो देन देयर कैन बी ए रीजन कि एक तरफ तो डिस्काउंट शामिल है और दूसरी तरफ जब आप उसको इनवॉइस कर रहे हो तो डिस्काउंट शामिल नहीं. तो देयर कैन बी आई थिंक मोर देन 10 प्लस रीजंस फॉर व्हिच a turnover which has been disclosed in the GST is different than the turnover
which is reflected in the financial statements. तो ये पूरा reconciliation आपका आना चाहिए as and when you are basically auditing the financial statements. बेसिकली आप ये जो टर्नओवर का रिकॉन्सिलेशन करते हैं ना, वो हमेशा आपका जीएसटीआर में एक रिकॉन्सिलेशन स्टेटमेंट भी गवर्नमेंट आपसे बनवाती है. ओके, दैट इज जीएसटीआर 9C. जीएसटीआर 9C required to report difference between the turnover as per your books of accounts vis-a-vis the turnover declared in your returns. There may be a multiple of reasons for that. One may be a deemed supply, because in case where you have multiple GSTN for a particular pen, the supply between the two GSTN is liable for GST, whereas it will be treated as a stock transfer in the books of accounts. Correct. Okay, So, that may be a reason also. तो मालीवाल जी कहते हैं Therefore, कि हाँ सर प्लीज आप एक बार कंप्लीट करें. it's okay, please go ahead. तो उनका ये कहना है कि जैसे मान लीजिए कि आपने राजस्थान में आपका एक ब्रांच है ना, आपने एक रजिस्ट्रेशन राजस्थान में ले रखा है, दूसरा रजिस्ट्रेशन आपने महाराष्ट्र में ले रखा है. तो जब आप यहाँ से गुड्स ट्रांसफर करोगे महाराष्ट्र, तो फॉर राजस्थान जीएसटी पर्पस जब यहाँ का जीएसटीआर 9 फाइल होगा तो उसमें वो टर्नओवर काउंट होगा. Whereas for financial statement purpose it is a branch transfer. आप यहाँ से दूसरी अपने ऑफिस को ट्रांसफर कर रहे हो. तो जब इंडियस फाइनेंशियल स्टेटमेंट या जो आपके जब हम प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट बनाएंगे, तो इन दैट प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट दिस टर्नओवर विल नॉट बी काउंटेड, whereas it has been counted in the GST 9. तो ये कई सारे ऐसे रीजंस होते हैं which you need to think of, और then actually see that whether these are there in the reconciliation or not. The objective of making a reconciliation statement is to basically reconcile the figures disclosed in the returns, and if any discrepancy is found, first of all you must list out the reasons for the same. हमें रीजन ढूंढने की कोशिश करनी चाहिए, और फिर अगर एडिशनल लाइबिलिटी आती है तो देन वी शुड डिस्चार्ज दैट लाइबिलिटी विद द एप्लीकेबल इंटरेस्ट. Since the financial statements are audited and certified as true and fair well in advance of the time before preparing GST 9 and 9C, अगर कोई लाइबिलिटी की अंडर स्टेटमेंट या ओवर स्टेटमेंट होती है जिसमें अफेक्ट आर व्यू जो हमने एज एन ऑडिटर प्रेजेंट करा ऑन फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स पे, टू अवॉइड कि ये मिस्टेक्स आए, हमें जीएसटी ऑडिट और साइमल्टेनियसली कैरी आउट करनी चाहिए विद द ऑडिट ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट. ये जो कहना चाह रहे हैं, क्यों कह रहे हैं ऐसा कि अभी फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स जनरली जो साइन हो रहे हैं वो कंपनीज के सितंबर से पहले हो जाते हैं, है ना. जैसे मार्च 22 के फाइनेंशियल स्टेटमेंट है वो मार्च सितंबर 22 से पहले हो जाएंगे, या मार्च 21 के थे तो वो सितंबर तक हो गए. जबकि जीएसटीआर की डेट जो है वो हमेशा आगे बढ़ती रही, एंड बाय प्रैक्टिस ये जीएसटीआर के जो एनुअल रिटर्न है वो हमेशा बाद में फाइल हुई बाय प्रैक्टिस, या जो भी अल्टीमेटली जीएसटी. तो इसकी वजह से जो भी एडिशनल लाइबिलिटी आती है उसको ये पेमेंट करने की बात कर रहे हैं, उसको अकाउंट फॉर करने की बात कर रहे हैं. हाँ मनीष जी, आप कुछ कह रहे हैं. The due date is 31st December in normal case. Even in normal case, due date is 31st December for GSTR annual return filing. Annual return filing. बेसिकली मैं है ना आपको एक इसका बहुत ही नटशेल में यदि जवाब दूं जो हम लोग डिस्कस कर रहे हैं. In books of accounts, if you go for a P&L, ठीक है, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, एम्प्लॉय कोस्ट is not liable for GST. Okay, depreciation you kept outside. Depreciation हम assets के ऊपर लगता है. Interest is basically a exempt supply. Okay, whatever if you are earning or paying. Any other revenue or expenses, every single, if you go for a double entry system, for any revenue or expenditure, second entry is GST. Okay. Either is IGST or CORS. तो आपका बुक्स ऑफ अकाउंट्स हमेशा तभी बेहतरीन ढंग से होगा जब आपका जीएसटी प्रॉपर ढंग से अकाउंट फॉर हुआ है. दैट्स व्हाई वी आर टॉकिंग अबाउट फाइनलाइजेशन ऑफ अकाउंट्स
in GST perspective. Thank you. So now we shall review balance sheet with a GST perspective. So first of all, property, plant and equipment हम इसमें discuss करेंगे. Block and ineligible credit, assets in custody of third parties, RCM on import of services, disposal of assets and right of use assets under India. So basically, during the finalization of accounts, हमें ये points consider करने चाहिए while auditing. In generally all assets में GST component होगा जो हम input tax credit avail कर सकते हैं इसके लिए. But for certain categories of assets, such input tax credit will be wholly not available or will be blocked. Ineligible credits अगर कुछ होती है that shall now form part of the cost of the asset and not be treated as input tax credit. Assets in custody of third parties हमें ये भी चेक करना चाहिए. RCM on certain items. ये अगर फर्स्ट आइटम अपन एक्सप्लेन करें, in general all assets purchased will have a GST component which can be taken as ITC. तो आप जब भी कोई परचेज एसेट कर रहे हो और अगर उसकी एज पर GST लॉ ITC एलिजिबल है, then that will be recognized as separate asset. उसका मतलब उसका जो परचेज ऑफ फिक्स्ड एसेट्स हो रहा है या जो भी इंटेंजिबल एसेट टेंजिबल एसेट आप परचेज कर रहे हो उसमें कैपिटलाइजेशन नहीं होना, वो एक सेपरेट एसेट रिकॉग्नाइज होगा, है ना. बट देयर आर सर्टेन कैटेगरीज ऑफ एसेट्स फॉर व्हिच ITC इज नॉट अवेलेबल and in certain cases input tax credit is available with restrictions more commonly known as block or ineligible credit. तो अगर ऐसी क्रेडिट्स है तो वो फिर उसका क्या होगा, that will part of the cost of the assets. We shall now discuss block ineligible credits for motor vehicles, vessels and aircraft and construction of immovable property. ITC is not available. However, there are certain exceptions to all of these. For motor vehicle, ITC would not be available if a motor vehicle is used for transportation of persons having an approved seating capacity of 13 people. 13 people would mean 12 plus 1 driver. In including leasing, renting or hiring of such motor vehicles. However, ITC can be availed if the motor vehicle is used for further supply of such vehicles in the course of business, if it is used for transportation of passengers, or if it is used for imparting training on driving such motor cars. So, what are the examples? Further supply of such vehicles. That means if someone is engaged in car business, if someone is engaged in the vehicle business only. Next is vessels and aircraft. Here also no ITC is available, but there are certain exceptions. Similar to what we have learned in motor cars. Here also, if the vessels and aircraft are used for further supply, transportation of passengers or transportation of goods and imparting training on either flying or navigating such aircraft or vessels. If any services of general insurance, services or repairs and maintenance is taken in respect of motor vehicles जहाँ पे input tax credit available नहीं है, तब ये जो services है of general insurance, services and repair and maintenance वहाँ पे भी हम उसका input tax credit नहीं ले पाएंगे. बट अगर हमें एक्सेप्शन वाली लिस्ट में से हम परफॉर्म कर रहे हैं कुछ एक्टिविटी और फिर हम उस पर रिपेयर्स एंड मेंटेनेंस जनरल इंश्योरेंस करा रहे हैं, वहाँ पे हम ये ITC क्लेम कर सकते हैं. कंस्ट्रक्शन ऑफ इमूवेबल प्रॉपर्टी में इनको टैक्स क्रेडिट नहीं मिलेगा. तो एज एन ऑडिटर यहाँ पे हमारा एक्शन पॉइंट ये होगा कि हम ये वेरीफाई करें कि अब जो अमाउंट कैपिटलाइज हुआ है उसमें वो करेक्ट तो है ना, और हमने कोई इस इनएलिजिबल आइटम पे GST इनपुट टैक्स क्रेडिट की नहीं लियो हमारी बुक्स में. Assets in custody of third parties. इसका assets से impact नहीं under GST Act, like capital assets such as mold, digs, fixtures, etc. can be held by third parties. For example, being a principal, मैंने मेरे job workers को ये asset दे रखी है to perform the job function.
तो however the auditor must ensure कि प्रिंसिपल ने एक डिटेल मेंटेन कर रखी हो कि ये टूल्स या ये कैपिटल एसेट्स मेरी यहाँ उस जॉब वर्कर के पास है और इस लोकेशन पे है. However, these capital assets should be returned within a period of 3 years. 3 years, otherwise इसे हम डीम सप्लाई मान लेंगे और उस पर GST चार्ज करेंगे. तो एज एन ऑडिटर हमारा एक्शन पॉइंट यहाँ पे ये होगा कि जहाँ पे कैपिटल असेट्स मैंने जॉब वर्कर्स को सेंड करी है वहाँ पे मैं ये चेक करूँ कि प्रिंसिपल उनकी डिटेल्स मेंटेन कर रहा है और अगर वो विद इन द रिक्वायर्ड टाइम रिटर्न नहीं होती है तो देन वो एक ग्रीन सप्लाई कंसिडर हो और उस पर रेलिवेंट चार्ज डिस्चार्ज हो. RCM ऑन इम्पोर्ट ऑफ सर्विसेज, यहाँ पे मैं एक एग्जांपल देके एक्सप्लेन करना चाहूंगी. फॉर एग्जांपल RCM? एक सप्लायर है जो कि मेरा आउटसाइड इंडिया यूएसए में है और बीइंग अ रेसिपेंट मैं यहाँ इंडिया में हूँ. तो वो सप्लायर मुझे इरेक्शन और कमीशनिंग, टेक्निकल कंसल्टिंग सर्विसेज या फिर एक आर्किटेक्ट सर्विसेज दे रहा है जो विच इज रिक्वायर्ड टू बी कैपिटलाइज अंडर AS10 और इंडिया 16 विच इज फॉर PPE. देन इस ट्रांजैक्शन को हम इंपोर्ट ऑफ सर्विसेज ट्रीट करेंगे और इस पे हम टैक्स रिवर्स चार्ज मैकेनिज्म पे देंगे which implies कि recipient is liable to pay tax on pay GST on this services. As an auditor हमें यहाँ पे चेक करना हमें we should verify कि एंटिटी में अगर कोई import of services हुई है तो हमें वो चेक करनी चाहिए और अगर import of services हुई है then हमको ये चेक करना चाहिए कि being a recipient उस बिजनेस एंटिटी ने वो लाइबिलिटी डिस्चार्ज करी हो और जो टैक्स RCM के अंदर पे हुआ है उसको ITC नहीं क्लेम करे if it is for construction of business building as earlier discussed. Disposal of assets on which input tax credit has been taken. If for example we have purchased the asset और फिर हमने उसे बेच दी तो अब हमें क्या करना होगा जो रिमेनिंग पोर्शन ऑफ टाइम है उस पे जो इनपुट टैक्स क्रेडिट है वो हम रिवर्स करेंगे. Under the GST Act, maximum life of asset is taken as 5 years or 60 months. तो अगर हमने डिस्पोजल करा है तो हम क्या टैक्स पे करेंगे? It should be higher of the input tax credit availed on such capital goods reduced by the percentage point or the tax on transaction value of such capital goods whichever is higher. However, इसका एक एक्सेप्शन है. अगर हमने हमारी कैपिटल एसेट एज अ स्क्रैप डिस्पोज ऑफ करी है देन वो जो अभी ये इनपुट टैक्स क्रेडिट अवेल्ड हम reduced by such percentage of points हम कंसिडर नहीं करेंगे और we shall pay tax on the transaction value of such capital goods. तो ये एग्जांपल है. कॉस्ट ऑफ एसेट मेरी 10 लाख रुपीज है. इस पे मैंने ITC क्लेम करा है 1,80,000 रुपीज. ये एसेट मैंने 3 साल बाद सेल करी है फॉर 3,25,000 रुपीज. तो इसमें सिंस ये एज अ स्क्रैप सोल्ड हुई है तो हम वो दोनों कंडीशन सेटिस्फाई करेंगे और इसमें हायर ऑफ द फॉलोइंग कैलकुलेट करेंगे. तो ITC दैट विल बी रिवर्स विल बी 1,80,000 जो हमने ITC क्लेम करी है इनटू 2 years. 2 years as in 5 years minus 3 years. 2 years उसकी रिमेनिंग लाइफ थी. So this is calculated as 72,000. Next is the tax to be paid on the transaction value of the sale, which is 3,25,000 into 18%, which is equal to 58,500. So the higher of the two, 72,000 will be the tax liability on such assets. Right to use assets under Ind AS. In case where companies use Ind AS, हम हमारी बुक्स में एक राइट टू यूज असेट खड़ी करते हैं. इसका GST से कोई इम्पैक्ट नहीं पड़ेगा क्योंकि जो हम ITC क्लेम कर सकते हैं फॉर राइट टू यूज असेट वो बेस्ड होंगी उन इनवॉइसेस के लिए दीज रेंटल इनवॉइसेस के बेसिस पे होगी विदाउट कंसीडरिंग एनी फैक्टर्स लाइक टाइम वैल्यू एंड डिस्काउंटिंग. अंडर Ind AS हम AS में तो क्या होता है हम बेसिक अपनी कॉस्ट पे रिकॉर्ड करते हैं उसे, पर Ind AS में हम डिस्काउंटिंग फैक्टर और PV पे बेसिकली फेयर वैल्यू पे वैल्यू करते हैं हमारी एसेट्स को. तो जब हम फेयर वैल्यू पे वैल्यू करेंगे उसे तो उसका कोई भी इम्पैक्ट नहीं आएगा एज पर GST. तो इसका एक्शन पॉइंट ये होगा कि ऑडिटर को shall take additional care if any input tax credit has been availed by the entity. Next is inventories. Generally all inventories पे हम हमारी input tax credit ले सकते हैं. However, we shall proceed cautiously in case of goods in transit, goods at third party side sale on approval basis and adjustments to inventory on account of physical verification.
इन केस ऑफ गुड्स एंड ट्रांजिट हम तभी आईटी से अवेल कर सकते हैं जब वो गुड्स एक्चुअली रिसीव हो जाए एंटिटी के पास। इससे क्या होगा, एक टाइमिंग डिफरेंस क्रिएट हो जाएगी जब इनपुट टैक्स क्रेडिट अवेलेबल होगा और जब मैं अवेल कर पाऊंगी। इनपुट टैक्स क्रेडिट अवेलेबल जब होगा जब मैं उन गुड्स को परचेज करूंगी, और मैं अवेल तब कर पाऊंगी जब वो मुझे एक्चुअली रिसीव हो जाएंगे। तो इससे एज एन ऑडिटर वी शुड इंश्योर कि इनपुट टैक्स क्रेडिट वो एंटिटी तभी ले जब वो गुड्स एक्चुअली में रिसीव हो गई है। नेक्स्ट इज गुड्स एट थर्ड पार्टी साइट जॉब वर्कर। यहाँ पे दो केसेस हैं वेयर प्रिंसिपल ने जॉब वर्कर को गुड्स भेजे हैं, फॉर एग्जांपल फिनिशिंग या फिर पॉलिशिंग पर्पसेस के लिए। यहाँ पे एंटिटी को मेंटेन करना चाहिए एक रिकॉर्ड ऑफ इन्वेंट्रीज और प्रॉपर डॉक्यूमेंटेशन रखनी चाहिए टर्म्स ऑफ डिलीवरी चलान। सेकंड केस है कि जहाँ पे वेंडर ने ही डायरेक्टली जॉब वर्कर को रॉ मटेरियल भेज दिया। इस केस में प्रिंसिपल आईटीसी तभी क्लेम कर सकता है जब वो गुड्स फिजिकली रिसीव हो जाएंगे जॉब वर्कर के पास। तो यहाँ पे भी वही टाइमिंग डिफरेंस क्रिएट हो जाएगा कि जब मैंने रॉ मटेरियल परचेज करा तो तब तो मुझे आईटीसी फ्रीजर बोला आपको सब्जियां नहीं रखती इसमें भैया, नहीं घर में ये चीजें चलेगी में था, मेरा फ्रिज में रखते हैं। अब मैंने रख दी। ओ हिस्सा अभी हलवा अभी तक चल रहा है। Mute all, please. तो यहाँ पे आईटीसी अवेलेबल तो तब होगा जब मैंने रॉ मटेरियल परचेज कर ली, और आईटीसी मैं अवेल तब कर पाऊंगी जब वो गुड्स एक्चुअली में रिसीव हो जाएंगे मेरे जॉब वर्कर से। नेक्स्ट इज, अगर मैंने जॉब वर्कर को ये गुड्स सेंड करे हैं तो these goods must be returned back to the principal within a period of 12 months. This can be extended to a period of 24 months with the prior approval of the appropriate authority. अगर ये गुड्स मेरे को विद इन द स्पेसिफाइड टाइम लिमिट रिसीव नहीं होता है, देन अंडर द जीएसटी एक्ट दिस शैल बी ट्रीटेड एज अ डील सप्लाई और हमें इस पे टैक्स लायबिलिटी डिस्चार्ज करनी पड़ेगी। तो इसमें एक्शन पॉइंट दिए होंगे, बीइंग एन ऑडिटर we should verify whether the goods lying at the third party वो within the prescribed time receive हो जाए हमें, और अगर सेम अगर नहीं रिटर्न बैक हुए तो हम उसे डील सप्लाई मार के उस पे टैक्स लायबिलिटी डिस्चार्ज करें। गुड्स एट थर्ड पार्टी साइट, सेल ऑन अप्रूवल बेसिस हमने सुना होगा कि हम हमारे गुड्स दे देते हैं उन्हें, फिर हम एक टाइम पीरियड प्रिस्क्राइब कर देते हैं कि आप इतने टाइम पे वो देख बता दो कि आप ये सेल करोगे या नहीं करोगे। तो इसमें ये सप्लाई कब मानी जाएगी, तो इसका टाइम ऑफ सप्लाई तब होगा जब तो वो एक्चुअली रिप्लाई करते हैं कि हाँ हम ये गुड वी आर कंसिडरिंग इट एज अ सेल, और 6 मंथ फ्रॉम द डेट ऑफ रिमूवल। इसमें हम एज बीइंग एन ऑडिटर एक्शन पॉइंट ये होंगे कि अगर वो गुड्स विद इन 6 मंथ नहीं रिसीव हो रहे तो इट शैल बी ट्रीटेड एज अ डील सप्लाई एंड वी शैल डिस्चार्ज टैक्स लायबिलिटी ऑन द सेम। और अगर सेल ऑन अप्रूवल लिखा हुआ है तो देन इट विल नॉट बी काउंटेड एज पार्ट ऑफ द टर्नओवर। एडजस्टमेंट इन इन्वेंट्री ऑन अकाउंट ऑफ फिजिकल वेरिफिकेशन। हम फिजिकल वेरिफिकेशन ऑफ इन्वेंट्री करते हैं, फिर फिजिकल वेरिफिकेशन ऑफ इन्वेंट्री करते टाइम हमें कुछ डिस्क्रिपेंसीज नोटिस होते हैं। अब वो डिस्क्रिपेंसीज क्या क्या हो सकती है कि या तो जो मेरे गुड्स है वो एक्सपायर हो गए, चोरी हो गई, डैमेज हो गए, या फिर फ्री सैंपल जैसे डिस्ट्रीब्यूट कर दिए, या तो हमने वेंडर को ही रिटर्न बैक कर दिए। और थर्ड केस ये हो सकता है कि हमारी इन्वेंट्री में तो वो गुड्स पड़े हैं पर हमने फाइनेंशियल अकाउंट्स में उन्हें कंसिडर ही नहीं करा। तो सम ऑफ दीज डिफरेंसेस मस्ट बी रिटर्न ऑफ और रिटर्न बैक। हम जब ये राइट ऑफ करेंगे तो हमें ये मेक श्योर करना है कि जो उन गुड्स पे जो आईटीसी हमने अवेल करा है हम उसे रिवर्स करें। So being an auditor, this is an action point that we must ensure that the ITC must be reversed when goods are returned off. Next are trade receivables. Trade receivables may, in case of export of services, GST rules mandate various conditions, like the location of recipient of service, it should be outside India. Place of supply should be outside India. The receipt of sale proceeds
should be in convertible foreign exchange or Indian rupees wherever permitted by the RBI. एक्सपोर्ट पे जीएसटी रेट निल होती है, तो इससे हमें if exports are to be made under such GST rate, then we shall हमें एक लेटर ऑफ अंडरटेकिंग फाइल करना पड़ता है. Then if also it states that convertible foreign currency और इंडियन रुपीज में ये रिसीवेबल होना चाहिए, और ये जो रिसीवेबल अमाउंट ऑफ मनी है दैट शैल बी रिसीव्ड विद इन 1 ईयर. अगर ये 1 ईयर में नहीं रिसीव होता है देन इट शैल बी ट्रीटेड एज अ डीम्ड सप्लाई अंडर जीएसटी एक्ट. इन इवेंट ऑफ नॉन इन दी इवेंट ऑफ नॉन रियलाइजेशन, मतलब मैंने एक्सपोर्ट कर दी, उसके बाद मुझे मेरी सेल्स प्रोसीड रियलाइज ही नहीं, तब भी वी शैल कंसीडर इट एज अ डीम्ड सप्लाई और हमें इस पे लायबिलिटी डिस्चार्ज करनी पड़ेगी. In export of services, there can be subcontracting also. For example, if A limited company ने B limited company भी USA में है, उसको फर्नीचर एक्सपोर्ट करा है, बट बिकॉज फर्नीचर को ट्रांसपोर्ट करने की वजह से वो उस पर डैमेज हो सकता है, तो उसने एक C लिमिटेड पार्टी से कॉन्ट्रैक्ट करा है कि हम ये गुड्स भेज देंगे, तब आप इसे असेंबल करके C लिमिटेड पार्टी को B लिमिटेड को भेज देना. तो यहाँ पे देर आर टू कॉन्ट्रैक्ट. फर्स्ट इज द एक्सपोर्ट ऑफ गुड्स बिटवीन A लिमिटेड एंड B लिमिटेड, and second there is the import of services between A limited and C limited. तो यहाँ पे liability appropriately discharge होनी चाहिए. तो being an auditor ये हमारे action points होंगे. We shall look into the various aspects in relation to the export and services from a perspective of GST. The auditor is expected to verify whether the export of services criteria is met in terms of receivable and in case the same is not done and that if tax payable is material, it may affect the true and fair view of the financial statement. Hence, due care must be exercised during finalization and audit of such financial statements. Next is other current assets. जब हम being an auditor हम client audit में हमारी अदर करंट एसेट वेरीफाई करेंगे, तो ऑडिटर शुड मैप द इनपुट क्रेडिट लेजर्स में हमारे अदर करंट एसेट्स में शो होंगे. तो बीइंग एन ऑडिटर हमें एक रिकंसिलिएशन स्टेटमेंट प्रिपेयर करना चाहिए, और एक्शन पॉइंट्स ये होंगे कि हम 2-वे रिकंसिलिएशन बनाएंगे, बुक्स वर्सेस जीएसटी रिटर्न फॉर्म एंड फॉर्म जीएसटीआर 3B वर्सेस जीएसटीआर 2A. The auditor should also ensure that the balance of input tax credit as per the financial statement is comprising of the eligible credit. मतलब उसमें कोई ineligible credit included नहीं हो. अगर वो included है तो हम उसे either कैपिटलाइज कर देना चाहिए उस एसेट में और उसे एक्सपेंस ऑफ कर देना चाहिए टू अ पीएनएल अकाउंट. The differences, if any, will affect the true and fair view of the financial statement. The following items generally form part of the reconciliation between books and GSTR returns. Input tax credit हमने subsequent period में लिया, however उसकी ट्रीटमेंट हम एक दूसरा अकाउंटिंग पीरियड में कर रहे हैं. इनपुट टैक्स क्रेडिट जो हमने बुक्स में दिखाई है वो अवेलेबल नहीं है जीएसटी पोर्टल में, बिकॉज इन केसेस ऑफ डीमर्जर और एक्विजिशन और सेकंड ट्रांजिशनल इनपुट टैक्स क्रेडिट बिफोर रजिस्ट्रेशन हमने ले लिया. रिवर्सल ऑफ आईटीसी मैंने पोर्टल पे तो करा दिया, पर मैंने बुक्स में वो आईटीसी रिवर्स नहीं करी है. कोई मेरा रिफंड रिजेक्ट हो गया या फिर शॉर्ट रिसीव हुआ है, वही सेम मुझे देखना चाहिए कि मैंने बुक्स में भी उसको करेक्टली अकाउंट पर कराया या नहीं करा. Refund filed without transferring ITC to refund receivable accounts which are pending for approval. The following items generally form part of reconciliation between GSTR 2A and GST returns. मेरे वेंडर ने ही अगर GSTR 1 लेट फाइल करी हो या फिर फाइल नहीं करी हो तो फिर वो मेरी 2A में रिफ्लेक्ट नहीं होगी. सप्लाईज फाइल्ड इन द फॉर्म GSTR 1, वो जो वेंडर ने सप्लाई फाइल करी है वो मेरी एंटिटी से रिलेटेड ही नहीं है. कोई इनएलिजिबल
बोला था अपन भी अपना वीडियो ऑन करें। हाँ मतलब म्यूट हो गया यस, ज्यादा देर तो नहीं हुआ ना, नहीं नहीं अभी बस बात है तो बस एक बार वापस trade payables. As in being an auditor, we should also verify trade payables from a GST perspective of view. First is import of services. As discussed earlier, हमें यहाँ पे देखना चाहिए whether RCM पे जो liability arise हुई है वो entity ने pay करी है या नहीं करी है. Second, for domestic creditors, अगर मेरा कोई supplier है और वहाँ पे मैंने payment नहीं करा है within the period of 180 days, then ये ITC रिवर्स करनी पड़ेगी और जब मैं उसे पेमेंट कर दूंगी ये ITC फिर मैं रिक्लेम कर सकती हूँ. नेक्स्ट हमें ये अब हम जीएसटी पर्सपेक्टिव को हम हमारी कंपनीज ऑडिट रिपोर्ट और टैक्स ऑडिट रिपोर्ट के पॉइंट ऑफ व्यू से भी पढ़ेंगे. तो जीएसटी कंसिडरेशन कारो 2020 में 3 चीजों में है. एक तो इन्वेंट्री, ऑफ कोर्स अनडिस्प्यूटेड स्टैट्यूटरी ड्यूज एंड डिस्प्यूटेड स्टैट्यूटरी ड्यूज. Under the clause 3, subclause 2 inventory, while reporting under this clause, the auditor should ensure जहाँ पे मेरी कोई इन्वेंट्री डिस्ट्रॉय हो गई है, डैमेज हो गई है या लॉस्ट हो गई है, तो वहाँ पे जो आईटीसी हमने अवेल करा है वो मुझे रिवर्स कर देना चाहिए. और हमने पहले डिस्कस करा है कि हमारे गुड्स इन ट्रांजिट सेल ऑन अप्रूवल बेसिस पे है या फिर गुड्स वर्कर्स और जॉब वर्कर्स के पास है, तो वहाँ पे हमें कॉशियसली रिपोर्ट करना चाहिए. नेक्स्ट इज अनडिस्प्यूटेड स्टैट्यूटरी ड्यूज क्लॉज 3 सब क्लॉज 7A. तो यहाँ पे अभी कारो 2020 में अमेंडमेंट आई है कि द वर्ड गुड्स एंड सर्विस टैक्स हैज बीन इंट्रोड्यूस्ड. अर्लियर कारो 2016 में ये वर्ड नहीं था, वहाँ पे सर्विस टैक्स दिया हुआ था, बट यहाँ पे अभी गुड्स एंड सर्विस टैक्स बता दिया है. तो अनडिस्प्यूटेड स्टैट्यूटरी ड्यूज वो है जहाँ पे उस पर कोई डिस्प्यूट नहीं चल रहा हो. Being an auditor under the Paro 2020, we should report whether the company is regular in depositing such dues. Under this clause, statutory dues basically means provident fund, employee state insurance, income tax, sales tax, goods and service tax, custom duty, excise duty, value-added tax, cess, or any other stat dues to the appropriate authority. जहाँ पे मेरे stat dues as on the closing date are standing for a period of more than 6 months, तो ये मैं separately indicate करूँगी. इसका बीइंग एन ऑडिटर का एक्शन पॉइंट ये होगा कि हमें रिव्यू करना चाहिए कि जो ड्यूज पे करे हैं एंटिटी ने और रिटर्न्स फाइल करी हो विद इन द ड्यू डेट है या नहीं है. तो जो लैंग्वेज हम वहाँ पे रिपोर्ट करेंगे उसके लिए आईसीआई ने गाइडेंस नोट निकाला है और ये मतलब प्रिस्क्राइब करिए कि ये वर्डिंग यूज करनी चाहिए. विद एप्रोप्रिएट केसेस आई शैल रीड आउट द फॉलोइंग वर्डिंग. Undisputed statutory dues including provident fund or employee state insurance, income tax, sales tax, service tax, duty of custom, duty of excise, value-added tax, goods and service tax have been regularly deposited by the company with the appropriate authorities in all cases. ये लैंग्वेज हम तब यूज करेंगे जब जो मेरी बिजनेस एंटिटी है उसने मेरे जो स्टैट्यूटरी ड्यूज है वो उसकी रिटर्न्स भी बिफोर ड्यू डेट फाइल करी है और जनरली रेगुलरली डिपॉजिट कर रहा है, कोई डिस्क्रिपेंसी नहीं है. नेक्स्ट इज हैव द एंटिटी हैव generally being regularly deposited with the appropriate authorities, though there has been a slight delay in few cases. जहाँ पे मेरी एंटिटी ने डिले फाइल करा है, बट जितना कोई मटेरियल डिले फाइल नहीं कराई थी वीसा मतलब कोई एडवर्स कमेंट करे तो वहाँ पे ये वर्डिंग हम यूज कर सकते हैं. थर्ड केस है have not generally been regularly deposited with the appropriate authorities.
So the delays in deposit have not been serious. मतलब मेरी business entity returns हमें regularly या फिर एक पैटर्न है कि उनका वो डिले ही फाइल करती है, बट वो उनका डिले इतना मेजर नहीं होता कि कोई सीरियस इम्पैक्ट है. Case 4 is have not been regularly deposited with the appropriate authorities and there have been serious delays in large number of cases. ये केस ये एक्सप्लेन करता है कि मेरी बिजनेस एंटिटी एक तो रिटर्न टाइम पे फाइल नहीं करती है और उसके बाद भी डिले बहुत ज्यादा है. So should we require to report the delays also, instances of the delay? Or No, just the plan. but I think we should report that. But need to confirm from the Caro itself. So the language ही लिखते हैं. Language ही लिखते हैं. language में रिपोर्ट करते हैं कि हाँ इन्होंने इतना डिले करा है. No, because see, I have to check with the Caro, but I think we need to report if there are large number of cases which are having serious delays. Next is disputed statutory dues clause 3 subclause 7b. जहाँ पे मेरी statutory dues तो है बट वो एक अंडर dispute और अंडर protest है कि अब तो वहाँ पे being under CARO 2020 we shall report the amount involved और जिस फोरम पे वो dispute pending है. इस henceforth अगर कोई माइनर सा अमाउंट भी मेरा डिस्प्यूट में पड़ा है तो वो भी मुझे अंडर CARO 2020 रिपोर्ट करना पड़ेगा और ऐसे रिपोर्ट करना पड़ेगा कि रीडर को पढ़ के ये समझ आ सके कि इतना अमाउंट इन्वॉल्व है, ये डिस्प्यूट और इस फोरम में पेंडिंग है. तो बीइंग एन ऑडिटर हमारे एक्शन पॉइंट ये हो सकते हैं कि हमारे पास असेसमेंट्स है तो उनको हम रिव्यू करते रहें, मैनेजमेंट से रिप्रेजेंटेशन और कंफर्मेशन ऑब्टेन करेंगे ये स्टैट्यूटरी ड्यूज उनके डिस्प्यूट में चल रहे हैं और उनकी लाइकलिबिलिटी की हमारे फेवर में वो डिसाइड होगा या नहीं होगा ये भी हमें रिव्यू करना चाहिए. थैंक यू. नाउ द पीपीटी शैल बी टेकन फॉरवर्ड. Thank you, Apoorva. Now I'll take the discussion forward. So first of all, GST and tax audit report. So there are some considerations or some disclosure requirement according to the GST or the GST Act which we need to be reported in our tax audit report. Let us understand what are they. First of all, GST registration details under Part A Clause 4. टैक्स ऑडिट रिपोर्ट में पार्ट ए क्लॉज 4 में हमारी जीएसटी की रजिस्ट्रेशन की डिटेल्स जाएगी. दैट इज एंटिटी all the registrations taken by an entity in different state or in multiple locations. Those details will be shown in part A clause 4. Second, ये आपको पूरा एग्जामिन करना चाहिए क्योंकि सपोज जब आप टैक्स ऑडिट कर रहे हो और उस वक्त आपको ये पता नहीं है कि इस कंपनी के कहाँ रजिस्ट्रेशंस हैं और आपने पिछले साल से उठा के और एज इट इज वही रजिस्ट्रेशंस इस साल कॉपी पेस्ट कर दिए एंड यू हैव नॉट एक्चुअली इंक्वायर्ड विद दैट कि आपने कोई नया ऑफिस तो नहीं किया है या कोई पुराना रजिस्ट्रेशन आपने सरेंडर तो नहीं किया है. तो based on those inquiries, whatever is the updated record, updated list of the registrations of the assessee, that should be reported over here. second point is reconciliation of GST on opening stock, purchases, sales and closing stock as part of section 145A of Income Tax Act under clause 14. Clause 14 के अंदर हमें ये दिखाना है कि auditor need to ensure that there are reconciliation of GST on the various items such as purchases, sales. उसका reconciliation auditor के पास होना चाहिए and which we need to show us in under clause 14. Third point is particular of depreciation allowable as per Income Tax Act. In respect of each asset or block of asset as the case may be. Under clause 18, depreciation जो भी income tax act के according हमें allowable होता है, we need to disclose that and the value of or the cost of the asset which we have shown in the tax audit report should be in line with the capitalized items shown in our balance sheet, shown or we can say shown in our financial statement. Fourth point is the expenditure by way of penalty or fine for violation of any law for the time being in force under clause 21A. Auditor need to ensure कि entity ने कोई भी penalty, interest या late fees वगैरह अगर pay करी है तो उसको GST पोर्टल से ये चेक करना है कि अगर entity ने at the year end कोई DRC 07 फाइल करा है या PMT 06 फाइल करा है. DRC 07 is basically the file at the year end. जब हम कोई liability pay करना भूल जाते हैं तो in that case entity needs to file that
tax amount or pay the tax amount through DRC 07. तो ऑडिटर को ही चेक करना है. Fifth point is details of ऐसा GST. क्यों है? इन्होंने लिखा ना बाय वे ऑफ पेनल्टी और फाइन फॉर वायलेशन ऑफ एनी लॉ. तो सपोज आपने जीएसटी का पेनल्टी कोई भरा है तो और वो अगर आता है तो देन दैट इज ए डिसोलेबल एक्सपेंडिचर. वो एक्सपेंडिचर अपने को अलाउ नहीं होता. दैट इज व्हाई दे एक्चुअली रिक्वायर दीस डिटेल्स इन द क्लॉज 21A. So you need to see while verifying the books of accounts that whether any such penalty is paid or not under GST law. जैसा दूसरों लॉ में देखना है, यहाँ GST लॉ में भी आपको ये देखना है. The point is details of GST paid on sales as part of section 43B under clause 26. So in this, auditor needs to ensure if there is any payment after the end of the financial year, then he needs to check whether that payment is properly discharged or. So what is section 43B of the income tax law? Yeah, some deductions are allowable when actual payment is made. So yes, now see, remember. So the point is that as and when you need to then see that if any GST expenditure is required to be taken as a expenditure for this purpose, whether the same has been paid or not. If not paid, then it will be basically added to the income of the assessee, and it will be later on reduced as and when it is paid. As Apoorva covered the balance sheet portion, now we'll start with the statement of P&L. So basically what we are going to discuss in this is that when an auditor has given an assignment of auditing the financial statements of any entity, then in that case, he needs to ensure or check the compliances of GST, which should be applicable while recognizing the incomes and while incurring the expenses. So what is revenue? Revenue is basically the incomes earned by the operations of the company. So auditor needs to ensure or auditor needs to make the financial statements while verifying, auditor needs to prepare the reconciliation as per the books with the GST return to ensure the proper classification of the turnover on the basis of the following terms. So as sir told us कि पहले कुछ मतलब टर्नओवर में जो बुक्स का होता है जो जीएसटी का होता है उसमें डिफरेंसेस होते हैं. So we need to check what are the reasons for that differences. First is we'll discuss all these in detail in the upcoming slide. Here I am just giving you an overview of this turnover of each registration in case of multiple location multi-registration. ऑडिटर को ये चेक करना होगा कि उसका अगर एंटिटी ने डिफरेंट लोकेशंस पे अगर रजिस्ट्रेशन ले रखे, जीएसटी नंबर्स ले रखे, तो उस केस में टर्नओवर अलग अलग जगह का चेक करना पड़ेगा. सेकंड, सप्लाई बिटवीन जीएसटी एंड ऑफ द सेम टाइम. अगर एक एंटिटी ने दो या दो से ज्यादा जीएसटी नंबर ले रखे तो उस केस में एक जीएसटी नंबर से दूसरे जीएसटी नंबर के अंदर कोई सप्लाई होती है, देन ऑडिटर नीड्स टू चेक दैट. क्रॉस यूटिलाइजेशन ऑफ सर्विसेज और क्रॉस चार्जेस. अगर एचओ ब्रांच को भी सर्विसेज प्रोवाइड कर रहा है तो उस केस में हमें क्रॉस चार्जेस चेक करने हैं. एक्टिविटीज ट्रीटेड एज सप्लाई इवन इफ मेड विदाउट कंसिडरेशन. There are some supplies which have been made without consideration. Basically, we call them deemed supply. So we need to check them. Fifth point is impact of discounts on GST. There are some discounts which does not form part of our taxable value. We need to check them. What kind of discount has been given by the supplier to the customer. Impact of GST on advance received. During the course of business, there are various kind of advances which we receive. तो क्या उस पे जीएसटी की लायबिलिटी अराइज होगी? We need to check that. Non-GST supplies. There are various supplies which are out of the ambit of the GST. Sales promotion schemes to promote the businesses or to increase the sales. Sales promotion schemes are introduced by the business organization. Exchange rate impact on turnover. When we exchange the goods or services, there is the impact of exchange rate in our turnover. Reimbursement of expenses incurred. If we are reimbursing the expenses, then in that case, we need to check the GST liability. Adjustment of requirement as per India and as per AS. So the companies which prepare their financial statements as per AS and as per India, but the turnover should not match with the GST. In that case, we need to adjust some of the things.
Now let us first come to the turnover of each registration in case of multiple locations, multiple registrations. अगर किसी एंटिटी ने मल्टीपल स्टेट्स में मल्टीपल रजिस्ट्रेशन ले रखे तो उस केस में हमें मल्टीपल लोकेशन पर उसका टर्नओवर चेक करना पड़ेगा. तो फर्स्ट पॉइंट इज ऑपरेशन इन मल्टीपल स्टेट्स. अगर कंपनी का मल्टीपल स्टेट में ऑपरेशन वो होता है, सपोज मेरा आज यहाँ पे एक फुटवेयर का बिजनेस है, आई एम ऑपरेटिंग दैट बिजनेस इन राजस्थान. सिमिलर मेरा वही बिजनेस मुंबई में भी ऑपरेट हो रहा है एंड हियर माय टर्नओवर इज 35 लाख एंड देयर माय टर्नओवर इज ओनली 5 लाख. सो इन दैट केस आई हैव क्रॉस्ड द लिमिट ऑफ 40 लाख. तो मुझे इस दोनों जगह पे मेरा GST-IN के लिए मेरे को रजिस्ट्रेशन ऑप्ट करना पड़ेगा. सेकंड, मल्टीपल रजिस्ट्रेशन विद इन द सेम स्टेट. आई वुड लाइक टू क्वेश्चन दिस कि कब कंपलसरी होगा हमें कि सेम स्टेट में हमें 2 GST लेने ही पड़ेंगे. यस, SEZ इन द केस ऑफ द DTA. मल्टीपल रजिस्ट्रेशन, अगर आपके मल्टीपल प्रोडक्ट्स है, यू आर डीलिंग इन मल्टीपल बिजनेसेस विद इन द सेम स्टेट, देन यू कैन ऑप्ट फॉर द मल्टीपल रजिस्ट्रेशन. बट अगर आपकी एक यूनिट सेज या DTA है, सेज मीन्स स्पेशल इकोनॉमिक जोन एंड DTA मीन्स डोमेस्टिक टैरिफ एरिया, अगर इसमें है देन आपको सिमिलर स्टेट में भी 2 कंपलसरी GST-IN लेने ही पड़ेंगे. उसके बाद ऑडिटर नीड्स टू, व्हाट एन ऑडिटर नीड्स टू बी डन इन दिस केस. ऑडिटर को टर्नओवर पैन इंडिया बेसिस पे हम चेक करते हैं और ऑडिटर को इंश्योर करना पड़ेगा कि जो बुक्स में हमारा टर्नओवर दिख रहा है, जो GSTR 1 में दिख रहा है, that should be matched, and if there are any differences then auditor needs to ensure that he has left with no material and no unexplained differences. Now moving forward, supply सीधा था कल बताया नहीं तेरे को. supply between GST and of the same pen. Verify the supplies made between various registration outside the state. अगर सपोज HO ने ब्रांच को कुछ ट्रांसफर करा तो उस केस में वो वाला ट्रांजेक्शन हमारी फाइनेंशियल स्टेटमेंट में रिफ्लेक्ट नहीं होता. इन दैट केस व्हाट ऑडिटर नीड्स टू बी डन इज उसे ई-वे बिल जनरेट करना पड़ेगा और हमें एज एन ऑडिटर हमें वो ई-वे बिल चेक करना पड़ेगा कि क्या एंटिटी ने आउटसाइड द स्टेट सप्लाई करते टाइम ई-वे बिल जनरेट करा था या नहीं करा था. Another point is cross utilization of services. There are so many stock transfer services or branch to branch transfer happen in the business, in the ordinary course of business. Suppose आज मैं अपना हेड ऑफिस बेंगलुरु में ऑपरेट कर रही हूँ एंड आई गॉट 6 ब्रांचेस इन डिफरेंट स्टेट्स. तो उस केस में मैं मेरा CEO CFO जो भी HR डिपार्टमेंट है और अकाउंटिंग सर्विस मेंटेनेंस डिपार्टमेंट है, दे आर सिटिंग इन बेंगलुरु. नाउ अगर ब्रांच को मुझे कुछ सर्विसेज प्रोवाइड करनी है, that will be treated as supply between distinct person. Distinct person means related person. HO and branches are related, they will be treated as distinct person. उस केस में वो cross utilization of services होएगा and the GST liability will be attracted on that. Activities treated as supply even if made without consideration. So there are some activities which we will treat as supply. जबकि उनमें कोई कंसिडरेशन रिसीव भी नहीं होता. They will be treated as deemed supply. What are they? First, supply of services between related parties. If a taxable person imports the services from a related party or from any other business establishment outside the India or outside the India for business purposes, this will be treated as import of services from a related party, and the GST liability will be attracted on RCM basis, that is reverse charge basis. So, for example, ABC Incorporation incorporated in the US is the holding company of B Limited subsidiary in India. Services, recharge, shifts, IT implementation, etc. are imported by B Limited from ABC Incorporation without any consideration. GST should be paid by B Limited on reverse charge basis. एक कंपनी है ABC Incorporation जो US में है, जो कि होल्डिंग है B कंपनी की, और B Limited सब्सिडियरी कंपनी है इंडिया में. अगर B Limited कोई सर्विसेज इंपोर्ट करवाती है ABC Incorporation से, तो उस केस विदाउट एनी कंसिडरेशन, देन उस केस में B Limited should have to pay the GST on reverse charge basis. Another point is permanent transfer of business asset where ITC has been availed on such assets. So first, let us understand the meaning of permanent transfer. Permanent transfer means transfer without an intention of receiving the goods back. मतलब अब हमारा कोई intention नहीं है उनको वापस receive करने का. That will be considered as permanent transfer. So
permanent transfer or sale of business assets on which ITC has been availed, which also treated as supply, even if no consideration is received. अब हमने बिना कंसिडरेशन के भी कोई बिजनेस एसेट सेल करा है, परमानेंटली ट्रांसफर कर दिया, तो उस पर हम जीएसटी अवेल करेंगे, मतलब जीएसटी हम पे करेंगे, हम उसे एज डीम्ड सप्लाई ट्रीट करेंगे. But if we have done this in the personal, if we have transferred the personal asset of personal property, then that case will not pay, GST liability will not be attracted to person. So what auditor needs to be done in this? जो ये related party transactions होते हैं, these are not shown in our financial statement. So auditor needs to disclose, auditor needs to show the proper disclosure as per accounting standard 18 related party disclosures, and he needs to show that the proper GST liability has been treated, or transactions are complete and properly disclosed in notes or schedules. Now, classification of supply under various chapters, HSN classification. Whenever a company deals in multiple products or multiple goods and services, आज मेरा एक बिजनेस है, उसमें मैंने फुटवेयर का भी कर रखा है, उसमें मैंने क्लोथिंग मटेरियल भी कर रखा है, और भी कुछ अलग अलग डिवीजन है. तो वी नीड्स टू चेक कि अगर अलग अलग डिवीजन है तो उस पर क्या अलग अलग जीएसटी रेट भी एप्लीकेबल होगी, और वो रेट जो एप्लीकेबल होगी वो प्रॉपर चैप्टर वाइज क्लासीफाई हो रही है ना, एचएसएन कितने नंबर का शो होना चाहिए और कितने नंबर का हम शो कर रहे हैं, वो प्रॉपर क्लासिफिकेशन हो रहा है. इसका एक एग्जांपल दिया हुआ है कि जनरली जो फुटवेयर का बिजनेस होता है उसमें टेक्स्ट की जो रेट लगती है वो 18% होती है, मतलब फुटवेयर पे जो रेट लगेगी दैट इज 9% सीजीएसटी एंड 9% एसजीएसटी. बट अगर पर पेयर शूज रिटेल सेल में अपना 1000 रुपीज से कम है तो उस केस में सिर्फ हम 5% ही चार्ज करेंगे, दैट इज 2.5% एसजीएसटी एंड 2.5% सीजीएसटी. ऑडिटर को ये इंश्योर करना है कि प्रॉपर क्लासिफिकेशन गुड्स का हुआ है या नहीं हुआ है, जो रेट जिस प्रोडक्ट पे एप्लीकेबल होनी चाहिए थी उतनी ही रेट उस प्रोडक्ट पे चार्ज हुई है. नाउ द सेवेंथ पॉइंट इज इम्पैक्ट ऑफ डिस्काउंट ऑन जीएसटी. जब भी सप्लायर कुछ सप्लाई करता है अपने कस्टमर को तो जनरली वो कुछ डिस्काउंट ऑफर करता है अपने कस्टमर को कि हम भी जब एज ए कस्टमर कुछ बाय करने जाते हैं तो हम बार्गेन करते हैं, तो वैसे ही सप्लायर जब डिस्काउंट ऑफर करता है तो हमें चेक करना है वेदर दैट डिस्काउंट विल बी चार्जेबल टू जीएसटी, या फिर हम उस डिस्काउंट को हमारी टैक्सेबल वैल्यू का पार्ट बना के उस पर जीएसटी पे करेंगे, या हमारी टैक्सेबल वैल्यू का पार्ट उसे नहीं बनाएंगे. तो क्या कंडीशन है जब हम उसे अपनी टैक्सेबल वैल्यू का पार्ट नहीं बनाएंगे? तो फर्स्ट इज बिफोर और एट द टाइम ऑफ सप्लाई, इफ सच डिस्काउंट इज ड्यूली रिकॉर्डेड इन द इनवॉइस इशूड. अगर मैंने आज इनवॉइस इशू कर रही हूँ और एट द सेम टाइम उसमें डिस्काउंट शो हो रहा है, उसी इनवॉइस से रिलेटेड है वो, तो हम उससे टैक्सेबल वैल्यू का पार्ट नहीं बनाएंगे. लेट अस टेक एन एग्जांपल. सपोज मैंने आज कोई 5000 की परचेज की और सामने से मुझे डिस्काउंट मिला है 1% का, मीन फॉर 50 रुपीज. तो आर टैक्सेबल वैल्यू विल ओनली फॉर्म ऑफ 5000 माइनस ₹50, दैट इज 4950 विल बी ऑफ टैक्सेबल वैल्यू. ठीक है, लेकिन क्या आफ्टर सप्लाई हमें डिस्काउंट मिल सकता है? आफ्टर सप्लाई भी हमें जो डिस्काउंट मिलेगा उस पर भी हम जीएसटी चार्ज नहीं करेंगे, बट उसके लिए हमें दो कंडीशन फुलफिल करनी पड़ेगी. लेट अस रीड विद द प्रोविजन. फर्स्ट, if such discount is established in terms of agreement entered specifically linked to relevant invoices. First, second one is ITC is attributable to the discount on the basis of document issued by the supplier has been reversed by the recipient of the supply. तो पहली कंडीशन ये है कि आपको आफ्टर सप्लाई भी डिस्काउंट तब एलिजिबल होगा जब आपने कॉन्ट्रैक्ट में एंटर करा था, तब आपकी कॉन्ट्रैक्ट की कंडीशन में ये था कि आप डिस्काउंट अवेल कर सकते हो और साथ में वो पर्टिकुलर उसी इनवॉइस से लिंक्ड है. सेकंड ये है कि जब आपने डिस्काउंट अवेल कर दिया तो उसके बेसिस पर जो आपको क्रेडिट नोट सप्लायर इशू करेगा उस पर क्या आपने आईटीसी रिवर्स कर दिया. तो दीज टू कंडीशन मस्ट बी फुलफिल्ड. अब इसका एक एग्जांपल लेते हैं. जैसे सपोज अभी अपन ने 5000 वाला एग्जांपल लिया और वो 1% का डिस्काउंट हुआ. अब उसके बाद सप्लायर ने आपको बोला कि अगर आप विद इन 7 डेज पेमेंट करते हो तो आपको 0.5% का डिस्काउंट एडिशनल मिलेगा, दैट इज ऑफ 25 रुपीज. अगर आपने 7 डेज में पेमेंट कर दिया तो आपको वो 25 रुपीज का डिस्काउंट अवेल हो जाएगा, और उस 25 रुपीज पे सप्लायर एक क्रेडिट नोट इशू करेगा जिसपे जो जीएसटी चार्ज होगा उसे रिसिपिएंट को रिवर्स करना होगा.
Now, impact of GST on advance receipt. There are various advances which we received in an ordinary course of business. So what are they? Can you tell me what is security deposit? At the time of rent, we deposit. Rent पे कुछ देते हैं तो एक security money होता है. Okay, let me explain this. सपोज आज ये पीडब्ल्यूडी के टेंडर वगैरह काफी सारे पास होते हैं, गवर्नमेंट करते हैं, कंपनीज करती है. तो उस केस में कॉन्ट्रैक्टर ने किसी टेंडर के लिए अप्लाई करा. टेंडर अप्लाई करते टाइम उसे दो अमाउंट डिपॉजिट कराने पड़ते हैं, तो सिक्योरिटी डिपॉजिट प्लस अर्नेस्ट मनी डिपॉजिट. कैन एनीबॉडी टेल मी व्हाट इज अर्नेस्ट मनी डिपॉजिट? They are not audible. In case if there is a cancellation of the contract, then the earnest money is not returned back. Security deposit. No. Earnest money and so there's a basic difference between earnest money deposit and security deposit. Earnest money deposit वो होता है जो हमें टेंडर की गारंटी इशू करता है, और सिक्योरिटी डिपॉजिट वो होता है जो हमें वर्क की गारंटी प्रोवाइड करता है. अगर आज Earnest money deposit is deposited by all tender, all Yes, bidders. yes. But security deposit is ultimately deposited by the successful bidder. And when he deposit the successful, when successful bidder deposit the security deposit, he can adjust that earnest money deposit which has been paid by him while bidding the tender. And the entire earnest money deposit which has been received by the company, so whosoever are not successful bidder, to them EMD is refunded back. तो सिक्योरिटी डिपॉजिट जैसे कि लेट मी एक्सप्लेन द टर्म सिक्योरिटी डिपॉजिट. कोई भी कॉन्ट्रैक्ट आज कॉन्ट्रैक्टर ने अप्लाई करा, उसने सिक्योरिटी डिपॉजिट उसने सिक्योरिटी डिपॉजिट जमा कराया. अब होता क्या है, कॉन्ट्रैक्ट कंप्लीट हो गया, कॉन्ट्रैक्ट अलॉट हो गया. कॉन्ट्रैक्ट अलॉट होने के बाद एक एग्रीमेंट में कुछ टर्म्स एंड कंडीशंस लिखी होती है जो कि कॉन्ट्रैक्टर और ओनर या जो टेंडर इशू करते हैं उनके बीच में होती है. तो उसमें कुछ बेसिक चीजें होती है कि आपको इस टाइम तक कंप्लीट करना है कॉन्ट्रैक्ट, या इस टाइम तक आपकी बिलिंग साइकिल ऐसे रन होगी, या फिर आपकी क्वालिटी चेक होते हैं कि क्वालिटी चेक पास करने होंगे आपको. उस केस में अगर कॉन्ट्रैक्टर कुछ भी टर्म्स एंड कंडीशंस को ब्रेक करता है तो वो जो पेनल्टी होती है वो टेंडर या ओनर जो होता है वो उस सिक्योरिटी डिपॉजिट में से क्लेम कर सकता है, सिक्योरिटी डिपॉजिट में से रिकवर कर सकता है. इसकी जीएसटी इम्प्लीकेशन हम अभी आगे बढ़ेंगे. सेकंड, रिटेंशन मनी. कैन एनीबॉडी टेल मी व्हाट इज रिटेंशन मनी? लेट मी एक्सप्लेन. तो रिटेंशन मनी जैसे आपको टेंडर अलॉट हो गया, अभी कोई ये मान लो, दूसरा एग्जांपल लेते हैं कि कंस्ट्रक्शन साइट पे कंस्ट्रक्शन चल रहा है और अब एज ए कंपनी मेरा और एक कॉन्ट्रैक्टर का कॉन्ट्रैक्ट हो रखा है. उसकी 15 डेज की बिलिंग साइकिल उसने बना रखी है और हर 15 डेज में वो मुझे एक बिल भेजता है पास करने के लिए. सपोज आफ्टर 15 डेज ही सेंड मी द बिल ऑफ ₹1 लाख. मैंने उसमें से क्या करा, 5% रिटेंशन मनी रख लिया, दैट इज ₹5,000. ठीक है, ₹5,000 इसलिए क्योंकि 5% से ज्यादा आप रिटेंशन मनी नहीं रख सकते. 5% इज द मैक्सिमम रिटेंशन. It is basically as per the contract of the contract between the parties. So it may be 10% also. तो 5,000 उसने एज ए रिटेंशन मनी रख लिया. अब हम रिटेंशन मनी क्यों रखते हैं? रिटेंशन मनी हम इसलिए रखते हैं क्योंकि सपोज कॉन्ट्रैक्ट कंप्लीट हो गया, कॉन्ट्रैक्ट कंप्लीट होने के बाद आपका एक डिफेक्ट लायबिलिटी पीरियड स्टार्ट होता है, जिसमें सपोज आपके कुछ भी डिफेक्ट्स आते हैं, कुछ भी बिल्डिंग में कोई भी क्रैक्स वगैरह आता है, तो उस केस में आप अगर कॉन्ट्रैक्टर को पूरा बिल पास कर देंगे तो वो तो 9-11 हो जाएगा, उसको कोई मतलब नहीं है फिर आपकी बिल्डिंग से और किसी भी चीज से. तो उस कंडीशन में क्लाइंट अपना जो भी एक्सपेंसेस होते हैं वो उससे करवा देता है, और उसके बाद अगर सारे डिफेक्ट रिकवर हो जाते हैं तो रिटेंशन मनी रिलीज कर देता है. लेकिन एडवांसेस फॉर मटेरियल्स टू बी सप्लाइड एंड एडवांसेस फॉर सर्विसेज टू बी रेंडर्ड इन फ्यूचर. नाउ लेट अस अंडरस्टैंड द जीएसटी implications on these terms. तो सिक्योरिटी डिपॉजिट. तो सिक्योरिटी डिपॉजिट का वो पार्ट जो है द पेनल्टी और एज एन और ऑन हैपनिंग ऑफ ए कंटीजेंट इवेंट जो हमने एज ए पेनल्टी रिकवर कर लिया है उस पे तो जीएसटी चार्ज होंगे.
लेकिन जो अमाउंट रिलीज हो चुका है, जो अमाउंट रिफंडेबल है, उस पर कोई जीएसटी चार्ज नहीं होगा। सेकंड, रिटेंशन तो जब मनी। सिक्योरिटी डिपॉजिट लेंगे तब हम कोई भी जीएसटी नहीं लेंगे, लेकिन सपोज समवन डिफॉल्ट्स और उसकी वजह से हम उस सिक्योरिटी डिपॉजिट को फॉरफिट करते हैं या उसका कुछ पोर्शन फॉरफिट करते हैं, तो जो फॉरफिटेड पोर्शन है ऑन दैट इट विल बी जीएसटी विल बी लेवी। दैट इज व्हाट यू आर। सेकंड इज रिटेंशन मनी। तो रिटेंशन मनी जैसे अपने एग्जांपल में 1 लाख का था, तो 1 लाख में जो 1 लाख पे पूरे पे ही एट द टाइम ऑफ इनवॉइस 1 लाख पे हम जीएसटी चार्ज कर लेंगे। ऐसा नहीं होगा कि 95 पे करेंगे और 5 में जब हम बाद में रिलीज करेंगे तब करेंगे, पूरा का पूरा 1 लाख रुपीज पे हम आज ही जीएसटी चार्ज कर लेंगे। ठीक है, लेकिन सपोज रिटेंशन मनी को भी बाद में, एक बार तो आपने चार्ज कर लिया अमाउंट रिटेंशन मनी पे, और सर अल्टीमेटली वो जाएगा तो कॉन्ट्रैक्टर के पास है ना। बट एट द सेम टाइम सपोज रिटेंशन मनी को भी आप फॉरफिट करते हो बिकॉज ऑफ द डिफेक्ट लाइबिलिटी पीरियड, उसको भी आप वापस पेमेंट नहीं करते हो फॉर एनी ऑफ द रीजन, तो क्या होगा? तब भी तो वो भी तो एक तरीके से फॉरफिचर ऑफ। उसका जो यूसेज होगा वो तो उसी पर्टिकुलर टाइम के लिए होगा ना। आप रिटेन किस कंडीशन में करोगे? जब आपका डिफेक्ट जो है वो रिपेयर नहीं हुआ है, या फिर आप जो कॉन्ट्रैक्टर के साथ डील हुई थी, या कोई उसका डिफेक्टिव उसने अपने को इक्विपमेंट सप्लाई कर दिया, तो उसकी वजह से अपन उसको एक तरीके से उसका एलडी अपन काटेंगे, लिक्विडेटेड डैमेजेस। हाँ, तो ऑन दोज लिक्विडेटेड डैमेजेस वी नीड टू एक्चुअली रिकवर जीएसटी आल्सो। थर्ड पॉइंट इज एडवांसेस फॉर मटेरियल टू बी सप्लाइड। जो भी हमें गुड्स के लिए एडवांस रिसीव होता है उस पर कोई जीएसटी की इम्प्लीकेशंस नहीं होती, उस पर जीएसटी चार्ज नहीं होता। बट जो हमें सर्विसेज के लिए रिसीव होता है उस पर हम जीएसटी चार्ज करते हैं। उसको हम एट द टाइम जब हमारे पास एडवांस आ जाता है तो हम उसे उस पर जीएसटी लगा देते हैं। सपोज 100 रुपीज का मैंने कोई आर्टिकल, मेरे को 100 रुपीज की कोई सर्विसेज मेरे को प्रोवाइड करनी है, उसमें मेरे को आज 20 रुपीज एज मेरे को एडवांस मिल गए और फाइनेंशियल ईयर एंड हो गया, तो मैं आज 20 रुपीज को जब भी मेरी नेक्स्ट मंथ की रिटर्न में रिटर्न फिल करूंगी तो मैं उसको अपना टर्नओवर का पार्ट मानूंगी और 20 रुपीज पे जीएसटी पे करूंगी। अब जब मेरे पास एक्चुअल इनवॉइस आएगा तो 100 रुपीज में से वो मेरा एडवांस का अमाउंट एडजस्ट होगा और रिमेनिंग 80 रुपीज पे मैं अब वापस जीएसटी पे करूंगा। एक्सचेंज रेट इम्पैक्ट ऑन टर्नओवर। जब भी एक्सपोर्ट्स होते हैं तो एक्सचेंज रेट में हमारे काफी सारे डिफरेंसेस आते हैं। Supplies of goods and services invoiced in foreign currency are recorded in the books of account at the exchange rate prevailing on the date of supply. As per the GST, the exchange rate is to be adopted is the rate notified under Section 14 of the Customs Act. This will lead to the difference between books and GST return. एक्सचेंज रेट जीएसटी के अकॉर्डिंग तो होती है कि आप जो डेट ऑफ ट्रांजेक्शन है आप उस पर रिकॉर्ड करिए, मतलब डेट ऑफ ट्रांजेक्शन के टाइम जो एक्सचेंज रेट प्रिवेल कर रही है आप उस पर रिकॉर्ड करिए अपने टर्नओवर को। बट एज पर अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 11 दैट इज फॉर चेंजेस इन फॉरेन एक्सचेंजेस, उस केस में आपको वो रिकॉर्ड करना है एट प्री फिक्स एवरेज प्राइस पे या एवरेज रेट पे, जो चलती एवरेज रेट है उस केस में आपको उसको रिकॉर्ड करना है। तो इन दोनों के जो भी डिफरेंसेस आएंगे उसको ऑडिटर को रिकंसाइल करना पड़ेगा। So what an auditor needs to be done in this case is an auditor must review the reconciliation for revenue as per the financial statements with that of the amounts declared in GST on account of using different exchange rates before forming his opinion on the financial statement. There are some supplies which are out of the ambit of the GST. First, services by an employee to the employer in the course or relation to his employment. जब भी जहाँ पे भी एम्प्लॉयर और एम्प्लॉय का रिलेशन एस्टेब्लिश्ड होता है वहाँ कोई भी जीएसटी की लायबिलिटी अराइज नहीं होती है, बिकॉज एम्प्लॉय इज नाइदर सर्विंग द गुड्स नॉर द सर्विस। Second point is supply of goods from a non-taxable territory to another place in the non-taxable territory without such goods entering into India. So example of this, आज मैं यहाँ बैठी हूँ और मुझे यहाँ पे सप्लाई करवानी है। सपोज मैंने डील की है यूएस में, मेरा कोई बिजनेस है या फिर कोई भी एजेंट है, तो मैंने बोला है कि आप यूएस से मेरे गुड्स डायरेक्ट यूके के वेयर हाउस पे या यूके के कस्टमर को आप सेल कर दो विदाउट, जब वो गुड्स इंडिया में नहीं आ रहे, तो उस केस में वो आउट ऑफ द एम्बिट ऑफ जीएसटी है। थर्ड पॉइंट इज सप्लाई ऑफ वेयर हाउस गुड्स ऑफ एनी पर्सन बिफोर क्लियरेंस फॉर होम कंजप्शन। So anybody knows the meaning of clearance for home consumption?
तो लेट मी क्लियर दिस। अगर हमने कोई कुछ इंपोर्ट करा है, हमारे पास वो पहले कहाँ आएगा, कस्टम पे आएगा, वो उसके वहां पे वेयर हाउस में रखा रहेगा। हम वहां से कब तक हमारा जो भी आइटम है वो नहीं डिस्पैच करवा सकते, तब तक जब हम बिल ऑफ एंट्री को होम कंजप्शन नहीं फाइल कर देते। हम वो फाइल करेंगे, उसके बाद ही हम कस्टम से अपना अपनी जो अपन ने जो इम्पोर्ट करा है वो वाली चीजें हम लोग अपने गोडाउन में ला सकते हैं। बट इस केस में जीएसटी के एम्बिट से क्या होगा, इसमें ये कंडीशन दी हुई है कि मेरा कुछ इम्पोर्टेड गुड्स कस्टम के वेयर हाउस में रखे हुए हैं और 1 मंथ हो गया, मैंने कोई भी बिल ऑफ एंट्री नहीं फाइल की है अभी तक। लेकिन मैंने सपोज आपसे डील कर ली कि ये मेरे कस्टमर है और मैं डायरेक्ट इम्पोर्टेड गुड्स इनको सेल कर दूंगी। तो मैं बोलूंगी कि मैंने अभी तक बिल ऑफ एंट्री को होम कंजप्शन नहीं फाइल की है, तो आप जाके आप फाइल कर दो। और उस केस में जीएसटी की लाइबिलिटी डायरेक्ट कस्टमर ही पे करेगा, मेरे ऊपर कोई लाइबिलिटी नहीं आएगी। ठीक है। So what an auditor needs to be done in this, the auditor should conclude on the completeness of the above transactions by reviewing various agreements with the customers and related parties, if any. Promotion scheme. Sales promotion schemes ऐसी होती है कि to increase our sales, to expand our business and to promote our business entity, sales promotion schemes लेके आती है। तो फ्री सैंपल्स एंड गिफ्ट। फ्री सैंपल्स कैसे हो गए, जैसे मान लो मैंने आज कोई कॉफी शॉप ओपन की है एंड फर्स्ट डे मेरे को मेरा बिजनेस प्रमोट करना है, तो मैं क्या कर रही हूँ, अभी फर्स्ट डे मैं कोल्ड कॉफी डिस्ट्रीब्यूट कर रही हूँ सबको विदाउट एनी कॉस्ट। ठीक है। तो वो मेरा हो गया फ्री सैंपल। उस केस में क्या मेरे को जीएसटी की लायबिलिटी अराइज होगी? नहीं, मेरे को उस केस में कोई भी जीएसटी की लायबिलिटी अराइज नहीं होगी। फ्री सैंपल पे कोई जीएसटी पे नहीं करना होगा। बट एट द सेम टाइम मुझे चेक करना है कि जो मैंने इनपुट लिया है जब मेरे को परचेज करे थे, मैंने सपोज कॉफी बनाने के लिए जो भी मेरे को इंग्रेडिएंट्स लगे वो मैंने परचेज किए होंगे, उन पे जो मैंने इनपुट क्लेम करा है मुझे उसे रिवर्स करना पड़ेगा। नाउ लेट अस अंडरस्टैंड द कॉन्सेप्ट ऑफ बाय वन गेट वन फ्री। तो बाय वन गेट वन फ्री ऐसा नहीं होता है कि आपने एक प्रोडक्ट खरीदा उसके बाद आपको दूसरा मिल गया। बाय वन गेट वन फ्री का टेक्निकल मीनिंग ये होता है कि आपको एक प्रोडक्ट की प्राइस में दो प्रोडक्ट मिल गए। तो प्रोडक्ट की जो प्राइस है, दैट द कंसिडरेशन जो है, अमाउंट ऑफ कंसिडरेशन इज फिक्स्ड। तो जीएसटी का कोई डिफरेंट ट्रीटमेंट नहीं होगा। जैसे आप टैक्सेबल वैल्यू पे डायरेक्ट जीएसटी लगाते हैं, वैसे बाय वन गेट वन फ्री के अमाउंट पे आप डायरेक्ट जीएसटी लगा देंगे। तो ऑडिटर को क्या इंश्योर करना है इसमें? ऑडिटर नीड्स टू इंश्योर कि जो ट्रांजेक्शन है, जो सेल्स प्रमोशन है, वो किस टाइप का है, उसको बाइफरकेट करना है कि और वो फ्री सैंपल दिया है या एज एन गिफ्ट दिया है या फिर बाय वन गेट वन फ्री है। Now expenses reimbursement. For instance, in case of audit firms, out-of-pocket expenses like traveling, conveyance incurred and claim are liable to GST. Suppose I am doing articleship in XYZ Limited, XYZ and company. अब उस केस में अगर मुझे ट्रैवलिंग अलाउंसेस मिल रहा है, मुझे टीए मिल रहा है, तो जो मेरी फर्म होगी वो उस पर इनवॉइस रेज करेगी, वो इंक्लूसिव ऑफ जीएसटी करेगी, मतलब उस पर वो जीएसटी चार्ज करेगी। और जो सामने वाला क्लाइंट जब उसको जीएसटी का मतलब अब टीए का अमाउंट रिएम्बर्स करेगा तो उसे उसका इनपुट मिल जाएगा। तो दिस इज द कॉन्सेप्ट ऑफ एक्सपेंस रिएम्बर्समेंट। However, when reimbursement is sought for payments mandated by law, the same will not be subject to GST. जैसे कि अपन कुछ ऑर्गेनाइजेशन में देखेंगे तो गवर्नमेंट ने मैंडेटरी कर रखा है कि आपको अपने एम्प्लॉइज को कैब की सर्विसेज प्रोवाइड करनी है। ये वाली जो सर्विसेज है वो गवर्नमेंट ने मैंडेट करी है, मैंडेटेड बाय लॉ है, तो इस केस में कोई भी जीएसटी चार्ज नहीं होगा। ऑडिटर एक्शन पॉइंट, द ऑडिटर शुड वेरीफाई इफ एनी ट्रांजेक्शन फॉल्स अंडर द रियम्बर्समेंट कैटेगरी। अकाउंटिंग स्टैंडर्ड एडजस्टमेंट and entities preparing their financial statement following generally accepted accounting principles as applicable under Companies Act 2013 may adopt revenue recognition policy which may vary from the provisions of GST Act and rules prescribed thereunder. जो कंपनी एज पर गैप्स अपने फाइनेंशियल स्टेटमेंट बनाती है तो उसके टर्नओवर में और जीएसटी के टर्नओवर में डिफरेंस आ सकते हैं। वो डिफरेंसेस के रीजन क्या है वो हम यहाँ पे रिकंसाइल करते हैं। फर्स्ट, टर्नओवर एज पर बुक्स हमें दिया हुआ है, हमें एज पर टर्नओवर एज पर जीएसटी तक पहुंचना है इसके थ्रू। तो फर्स्ट डिफरेंस है, goods for which risk and reward has not been transferred to the buyer but is considered a supply in GST as the goods has been sent out of the factory. अगर हमने गुड्स डिस्पैच कर दिए, हमारे गोडाउन से गुड्स निकल चुके हैं, तो उस केस में तो हमने जीएसटी में पूरा हमारा आज सेल बुक कर ली। बट इन केस ऑफ अकाउंटिंग स्टैंडर्ड हम तब बुक करेंगे जब हमारे रिस्क एंड रिवॉर्ड्स भी ट्रांसफर हो चुके होंगे।
बट जीएसटी कंसीडर नहीं करता है रिस्क एंड रिवॉर्ड को। जैसे गुड्स आउट ऑफ फैक्ट्री गए वो जीएसटी के एम्बिट में आ जाएंगे। Second point is services not consumed during the year but on which the advance tax has been paid as per the GST Act. तो ये अपन ने पढ़ा था कि जो एडवांस रिसीव करते हैं हम सर्विसेज में उन पे जीएसटी की लायबिलिटी अराइज होती है। बट एज पर अकाउंटिंग स्टैंडर्ड सर्विसेज जो होती है या तो वो कंप्लीट हो जाती है कंप्लीटली रेंडर्ड हो जाती है तब अपन रिकॉग्नाइज करते हैं या फिर कंप्लीशन बेसिस पे रिकॉग्नाइज करते हैं। सेम केस इज विद द कंस्ट्रक्शन कॉन्ट्रैक्ट। तब जब अपन उसको हम एएस के अकॉर्डिंग completion basis पे recognize करते हैं। Then this is how we'll reach to the turnover as per GST. Now Ind AS adjustment. The company preparing its financial statements following Ind AS principle as applicable under Companies Act 2013 may adopt accounting policies which may not map with the provisions of GST Act and rules made thereunder. जो कंपनीज इंडेक्स फॉलो करती है उनके टर्नओवर में और अपने जीएसटी वाले टर्नओवर में डिफरेंस हो सकता है। तो हाउ विल रीच फ्रॉम द टर्नओवर ऑफ द बुक टू द टर्नओवर ऑफ जीएसटी? फर्स्ट पॉइंट इज revenue recognized in reporting currency having a functional currency other than Indian rupee. अगर आपने कोई भी एक्सपोर्ट करा है तो as we have discussed it earlier, जीएसटी के एक्ट के अकॉर्डिंग हम रेवेन्यू कैसे रिकॉग्नाइज कर लेंगे? डेट ऑफ ट्रांजेक्शन वाली चीज पे, मतलब जब ट्रांजेक्शन हुआ है, जब डेट ऑफ सप्लाई है, उस दिन हमारी एक्सचेंज रेट क्या है। बट अकॉर्डिंग टू इंडिया हम प्री फिक्स एवरेज रेट के बेसिस पे करेंगे। सेकंड पॉइंट इज रेवेन्यू पोस्टपोन टू सब्सिक्वेंट पीरियड्स इफ स्टिपुलेटेड कंडीशंस आर नॉट सेटिस्फाइड विद इन द सेम ईयर। सो एज पर इंडिया 115 रेवेन्यू रिकॉग्निशन, लेट मी गिव इट्स एग्जांपल। अगर हमने आज कोई गुड्स सप्लाई करे with a warranty period of 1 year or we can say 5 years, तो आज हमने 100 रुपीज का कोई आर्टिकल सप्लाई करा है तो हमें आज एस्टिमेटेड है कि मेरी जो वारंटी की लायबिलिटी है वो 25 तक अराइज हो जाएगी। मतलब वारंटी का उसमें इंक्लूसिव है 25 रुपीज एंड 75 रुपीज में आज पूरी सेल रिकॉग्नाइज कर लूंगी। तो क्या होगा इस केस में? वारंटी का जो है उसको तो मैं अपनी डेफर्ड रेवेन्यू मानूंगी और जो 75 रुपीज है उससे मैं पूरा अपना सेल मानूंगी। जैसे जैसे अब मेरा वारंटी का पीरियड निकलता जाएगा या वारंटी का पीरियड एक्सपायर हो जाएगा, एट द एंड मैं धीरे धीरे डेफर्ड रेवेन्यू जो मैंने बुक करा है उसमें से मैं सेल रिकॉग्नाइज करते जाऊंगी। तो दिस इज हाउ विल रीच टू द टर्नओवर एज पर जीएसटी। नाउ एक्सपेंसेस। अभी तक हमने रेवेन्यू पूरा डिस्कस कर लिया, मतलब हमने क्रेडिट आइटम्स पीएनएल के सारे डिस्कस कर लिए। नाउ विल कम टू द डेबिट आइटम्स ऑफ द स्टेटमेंट ऑफ पीएनएल. The auditor should review whether the proper input has been taken for the same. The entity should satisfy the following criteria to take input tax credit. Entity को क्या क्या criteria fulfill करना पड़ेगा तब जाके वो input claim कर पाएगी. First, entity should be in a possession of the tax invoice or a debit note or any other document issued by the supplier. अगर सप्लायर ने कोई इनवॉइस इशू करा है, वो एक वैलिड डॉक्यूमेंट होगा ना अगर रिसिपेंट के पास, उसी बेसिस पे वो इनपुट क्लेम कर सकता है. Second, it should have received the goods or services of both. जो भी जिस भी चीज में डील हुई है गुड्स या सर्विसेज तो वो आपके पास पहुंच चुकी है, मतलब आपके गोडाउन में डिलीवर हो चुके हैं. थर्ड इज द टैक्स चार्ज इन रिस्पेक्ट ऑफ सप्लाई हैज बीन पेड टू द गवर्नमेंट बाय द वेंडर. मतलब एज ए सप्लायर आपने जो आपकी आउटपुट लायबिलिटी बन रही थी वो आपने पे कर दी और द एंटिटी शुड हैव फर्निश्ड द रिटर्न्स अंडर सेक्शन 39. आपने लायबिलिटी पे कर दी. अब बेसिक सी बात है कि लायबिलिटी पे करोगे तो आप जीएसटीआर 3B के थ्रू ही करोगे. तो उस केस में एंटिटी ने अपनी लायबिलिटी भी पे कर दी और रिटर्न भी फर्निश कर दी. ब्लॉक क्रेडिट. तो देयर आर सम क्रेडिट, बेसिकली जो भी हम परचेजेस करते हैं गुड्स की, सर्विसेज की और अदर एक्सपेंसेस की, तो उन पे हमें इनपुट क्लेम होता है. बट गवर्नमेंट ने कुछ आइटम्स स्पेसिफिकली वेरीफाई कर दिए जिसपे हम इनपुट नहीं ले सकते. फर्स्ट वन इज सप्लाई ऑफ फूड एंड बेवरेजेस आउटडोर कैटरिंग. सपोज एबीसी लिमिटेड ने अपने एम्प्लॉय के लिए, अपने एम्प्लॉइज के लिए एज पार्ट ऑफ स्टाफ वेलफेयर कुछ रियम्बर्समेंट या फिर कुछ रिफ्रेशमेंट्स या फिर टी या कॉफी अरेंजमेंट किए, तो उस केस पे कंपनी आईटीसी नहीं अवेल कर सकती है. हेल्थ सर्विसेज पे आईटीसी हमें नहीं मिलेगा. लाइफ इंश्योरेंस एंड हेल्थ इंश्योरेंस पे भी वी कैन नॉट क्लेम आईटीसी. कैन एनीबॉडी टेल मी व्हाट आर द एक्सेप्शन टू दिस? तो इसके लिए कंपल्सरी है, अगर एम्प्लॉइज के लिए कंपल्सरी है. Exception is ITC would be available when inward supply of goods or services used by a registered person
for making an outward taxable supply or we can say used for furtherance of business. अगर ये सप्लाई मैंने आगे टैक्सेबल सप्लाई करने के लिए लिए तो फिर इस पे मेरे को इनपुट क्लेम अवेल हो जाएगा. दैट इन सिंपल लैंग्वेज अगर मैंने कोई इनवर्ट सप्लाई मेरी कोई टैक्सेबल आउटवर्ड सप्लाई करने के लिए लिए तो फिर मेरे को इनपुट अवेल हो जाएगा. Now, membership fees of a club, health and fitness center, travel benefits for employees. अगर फॉर एग्जांपल अगर एम्प्लॉय ने अपने एम्प्लॉय की मेंबरशिप फीस पे करी है तो उस केस में उसका कोई इनपुट क्लेम नहीं कर सकता. कोई इनपुट प्रियांशी एक बार लास्ट वाली स्लाइड पे जाना. हाँ देवेश, प्रियांशी एक बार लास्ट वाली स्लाइड पे जाना. ब्लॉक क्रेडिट या एक्सपेंस. हाँ ये ब्लॉक क्रेडिट वाले पे. ये ब्लॉक क्रेडिट वाले के अंदर अब अपन ये भी ध्यान रखना पड़ेगा कोई हेल्थ सर्विसेज या कोई इंश्योरेंस पॉलिसी जो किसी एम्प्लॉय को मतलब किसी कंपनी को अंडर स्टैट्यू मैंडेटरी है प्रोवाइड करने के लिए, अगर उस केस में अगर किसी एम्प्लॉय के लिए दी गई है तो उन पॉलिसीज और उन एक्सपेंसेस का खर्चा मैं एज एन एक्सपेंस और उसकी आईटीसी भी क्लेम कर पाऊंगा. खाली इसमें ये जरूरी नहीं है कि खाली फर्दरेंस ऑफ बिजनेस हो तो ही ले पाऊंगा. कुछ चीजें जो मैंडेटरी है कंपनी को करने के लिए अगर उस केस में मैंने कोई पॉलिसी ली है किसी एम्प्लॉय के लिए या किसी चीज के लिए तो मैं ले पाऊंगा. जैसे फॉर एग्जांपल इसके अंदर अपन बात करें जैसे कैब सर्विसेज की आईटीसी मैं नहीं ले सकता, पर अब मान लो कोई कंपनी के अंदर मैंडेटरी है कि कोई लेट नाइट किसी जो फीमेल एम्प्लॉय है उन्हें कैब सर्विसेज प्रोवाइड करी है तो वो मैंडेटरी है मेरे लिए, इस कारण से मैंने उसे कैब सर्विसेज प्रोवाइड करी. तो उस केस में अगर मैं कैब सर्विसेज प्रोवाइड करता हूँ और उस पे कोई जीएसटी लग के मेरे पास बिल आता है तो उनका मैं इनपुट ले सकता हूँ. So it should be mandatory between the employer-employee or it should be mandatory because of the certain government. नहीं सर, कोई गवर्नमेंट कंडीशन तो नहीं चाहिए, पर्टिकुलरली कोई गवर्नमेंट या स्टैच्यू ने वो मैंडेटरी कर रखा होगा तो मैं ले पाऊंगा. एम्प्लॉय और एम्प्लॉयर के रिलेशन की वजह से मैंडेटरी होना जरूरी नहीं है कि एम्प्लॉयर और एम्प्लॉय कॉन्ट्रैक्ट कर लिया कि आप ये दोगे सर्विसेज या मुझे कोई लाइफ इंश्योरेंस पॉलिसी प्रोवाइड कराओगे तो नहीं होगा. कोई गवर्नमेंट या कोई स्टैच्यू के अंदर मैंडेटरी रिक्वायरमेंट है तो ले पाओगे. Okay. Okay, भैया, thank you. Now, membership fees of a club, health and fitness center. तो membership fees में हमने डिस्कस करा कि अगर मैनेजिंग डायरेक्टर को कोई भी अगर एम्प्लॉयर मेंबरशिप फीस पे कर रहा है देन उस केस में हमें आईटीसी अवेलेबल नहीं होगा. Second is ITC on personal use of asset, goods and services. ITC will not be available for the goods and services used for personal purpose. अगर पर्सनल पर्पस के लिए हमने कोई भी गुड्स या सर्विसेज मतलब सपोज मान लो कि हमने बिजनेस पर्पस के लिए कोई गुड्स मंगाया बट अब हमने उससे पर्सनल कंजप्शन के लिए यूज कर लिया तो उस केस में भी हम आईटीसी अवेल नहीं कर सकते. थर्ड इज मेंटेनेंस ऑफ व्हीकल्स फॉर ट्रांसपोर्टेशन ऑफ पैसेंजर्स. GST paid on servicing and maintenance of such motor vehicles will not be allowed as input tax credit as we have discussed in this in balance sheet portion. जो भी हमारे इसका एक एक्सेप्शन होगा कि 13 मोटर व्हीकल्स विद कैपेसिटी ऑफ 13% इंक्लूसिव ऑफ ड्राइवर. तो उसके अपन ने एक्सेप्शन अपन पढ़ चुके कि अगर वो फर्दरेंस ऑफ बिजनेस में हुआ या फिर एनी अदर कंडीशन then in that case only ITC will be available, otherwise will not be available. So expenses on which GST is payable on reverse charge basis. There are some expenses जिन पे कि GST हमें reverse charge basis पे apply करना है. तो अगर सेंट्रल गवर्नमेंट, स्टेट गवर्नमेंट, यूनियन टेरिटरी और a local authority हमें यूज्ड व्हीकल्स या फिर सीज्ड एंड कन्फिस्केटेड गुड्स एंड ओल्ड एंड यूज्ड गुड्स वेस्ट एंड स्क्रैप सेल कर रही है टू एनी रजिस्टर्ड पर्सन तो उस केस में रिसिपिएंट दैट इज एनी रजिस्टर्ड पर्सन उसको आरसीएम के बेसिस पे जीएसटी पे करना होगा. सेकंड इज परचेज ऑफ सीमेंट. सप्लायर इन दिस केस कैन बी एनी पर्सन एंड द रिसिपिएंट ऑफ दिस इज प्रमोटर इन रियल एस्टेट. If the promoter in real estate purchases cement from any person, then in this case, the promoter in real estate, the recipient has to pay the GST on reverse charge basis. Third is service. So what does mean by promoter in real estate or his personal? Real estate entity in the course of business. So why Devesh, why it has been written that promoter in real estate? It must be the real estate companies only, no? For that business entity or for that promoter? Maybe promoter as in not in promoter in real estate company to promote.
So basically, it is real estate company. Third point is services of GTA. That is goods travel agency. अगर GTA कोई भी services provide करता है, then the recipient that is any factory, society, cooperative society, registered person, body corporate, partnership firm, casual taxable person located in the taxable territory. Then in this case, the recipient needs to pay the GST on RCM. Fourth is legal services of advocate. अगर कोई भी as an individual advocate services provide कर रहा है, inclusive of senior advocates, तो उस केस में business entity ने अगर hire कर रहा है, जो कि established है local territory में, तो recipient को RCM basis पे tax pay करना होगा. Fifth point is director service except remuneration. तो अगर अपन डायरेक्टर को सिटिंग फीस पे कर रहे हैं तो क्या तो उसको जीएसटी की इम्प्लीकेशन क्या होगी? आरसीएम में जाएगी. यस. अगर अपन डायरेक्टर को रेम्यूनरेशन के अलावा डायरेक्टर कोई भी और सर्विस प्रोवाइड कर रहा है तो उसके जब अपन डायरेक्टर को सेटिंग फीस पे करिए तो उस केस में डायरेक्टर की जीएसटी लायबिलिटी कुछ नहीं होगी. कंपनी नीड्स टू पे द जीएसटी ऑन आरसीएम बेसिस. सिक्योरिटी सर्विसेज. अगर सिक्योरिटी सर्विसेज सप्लाई कर रहा है एनी पर्सन अदर देन अ बॉडी कॉर्पोरेट or recipient a registered person being a body corporate located in a taxable territory, then the recipient needs to pay the RCM. Import of services. अगर हम as per the GST provision, import of services in the course of furtherance of business will be subject to GST on reverse charge basis. अगर हम कोई भी सर्विसेज import करवाते हैं, then उस केस में RCM पे करते हैं, recipient को पे करना होता है. ठीक है. उसके बाद हमारे पास कब हम ये कंसीडर करेंगे कि ये जो सर्विसेज है वो इम्पोर्टेड है. ठीक है. तो फर्स्ट कंडीशन ये है कि सप्लायर ऑफ सर्विसेज लोकेटेड आउटसाइड द इंडिया. जिससे हम सप्लाई ले रहे हैं वो आउटसाइड इंडिया में है, यहाँ इंडिया में नहीं है. सेकंड इज रिसिपिएंट ऑफ सर्विसेज लोकेटेड इन इंडिया एंड प्लेस ऑफ सप्लाई ऑफ सर्विसेज इन इंडिया. मतलब जहाँ हम जिसने परचेजेस की है वो इंडिया में है और जहाँ पर आपके आइटम्स आने चाहिए, जहाँ पे आपका वेयर हाउस है वो इंडिया में. रिकवरीज. नेक्स्ट पॉइंट इज रिकवरीज फ्रॉम एम्प्लॉइज एंड परक्यूजर्स रिकवरीज फ्रॉम एम्प्लॉइज एंड परक्यूजर्स टू एम्प्लॉइज फ्री गिफ्ट. So it is a practice of trade and industry that certain recoveries are made by the entity from their employees for the benefit enjoyed by those employees. These are commonly in nature of subsidized food, sponsorship fees or membership fees paid, medical expenses, etc. So, if we can take the practical example of this, जब भी employee कोई कंपनी छोड़ के जाना चाहता है तो उसे कुछ नोटिस पीरियड देना पड़ता है. मतलब कि आपको 2 या 3 महीने पहले बताना पड़ेगा कि मैं छोड़ के जाना चाहता हूँ या जाना चाहती हूँ. अगर उस केस में अगर आपको अभी के अभी कल के कल ही आपको कंपनी को लीव करना है तो उस केस में नोटिस पे एक रिकवरी होती है, वो एम्प्लॉय को पे करनी होती है. जनरली इस पे जीएसटी चार्ज होता है, बट अकॉर्डिंग टू द ओपिनियन ये नहीं होना चाहिए, क्योंकि अगर ओरिजिनली एक एम्प्लॉयर और एम्प्लॉय की रिलेशनशिप में कोई जीएसटी की एप्लीकेबिलिटी नहीं आती तो अगर डायरेक्टली हम कुछ चार्ज नहीं कर रहे तो देयर इज नो मींस ऑफ इनडायरेक्टली चार्जिंग द जीएसटी ऑन दिस. Example, suppose recoveries for canteen facility provided by an entity in case of a factory will not be liable to GST under RCM as the same is mandated under Factories Act. ये Factories Act के अंदर mandated है तो इस पे कोई भी GST की liability arise नहीं होगी. As per the Schedule 1 of CGST Act, gifts and purchases provided by business entities up to a value of rupees 50,000 per year to its employees are outside the ambit of GST. अगर आपने 50,000 तक के गिफ्ट आपके एम्प्लॉय को प्रोवाइड करे तब तक उस पर कोई जीएसटी चार्ज नहीं होगा. बट आपने मोर देन 50,000 इवन इन द कोर्स ऑफ फर्दरेंस ऑफ बिजनेस में भी प्रोवाइड करे तो उस पर जीएसटी चार्ज होगा. So what an auditor needs to be look into this is the auditor should verify the statement of P&L and review for the creation of GST liability on the recoveries made. Thank you. Both of our speakers have made very nice presentation. एक तरीके से जब भी हम फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स में ऑडिट कर रहे हो, फाइनेंशियल स्टेटमेंट का ऑडिट कर रहे होते हैं तो हमें जीएसटी के पर्सपेक्टिव को ध्यान में रखते हुए क्या क्या करना है. और इन्होंने करीब जैसे अपार्ट फ्रॉम द एक्सप्लेनिंग
that what are our duties while auditing the financial statement, while reporting. They have covered that what are the various balance sheet items, like your fixed assets, intangible assets, then trade receivables, trade payables. Then what are your profit and loss items? आपका ऑफ कोर्स एसेट साइड में इन्वेंट्री की जो आप बात करो, इन्वेंट्री, ये सारे आइटम पे कहीं ना कहीं हर जगह जीएसटी का एक इम्प्लीकेशन है, तो वो आपको देखना होता है। मैंने काफी डिटेल में एक्सप्लेन किया है। एंड प्रॉफिट एंड लॉस में भी रेवेन्यू एज वेल एज एक्सपेंस आइटम, इन सब में भी देयर आर लॉट ऑफ इश्यूज रिलेटेड टू द जीएसटी which need to be considered while doing the audit. So a good presentation by both of them. Now we will have this. सर भूपेन सर, देवेश। हाँ देवेश प्लीज। हाँ सर, मैं 1 मिनट 2 चीज मैं बोलना चाहूंगा। ये जीएसटी के अंदर अपन को ऑडिट करते हुए ये ध्यान रखना चाहिए, एज ऑन द डेट अगर अपन बात करें, आज मैं बैलेंस शीट बनाने की बात करूं कि मैं 31 मार्च को बैलेंस शीट बना रहा हूं, तो मैं समझूं पहले मैं पीएनएल की स्टडी करूं। पीएनएल में ऊपर ही ऊपर मेरे फर्स्ट क्रॉप। हाँ देवेश, एक बार सब आप थोड़ा सा साइलेंट रहिए, वो बंद करो। क्या हुआ? क्या भाई तो हाँ देवेश। हाँ, तो अपन बात कर रहे थे, मैं सबसे पहले पीएनएल की बात करूं तो पीएनएल में मैं समझूं कि मेरे ऊपर ही ऊपर सबसे पहले मेरे रेवेन्यू आइटम्स है। रेवेन्यू आइटम में जीएसटी की बात करूं तो आज मुझे मंथली जीएसटीआर 1 भरनी पड़ रही है और 3 भी भरनी पड़ रही है। तो जो मेरी सेल्स है वो एक तरीके से जो भी महीना मैं आज कंप्लीट करता हूं, जैसे मैं 31 मार्च की बात कर रहा हूं, तो बाय द एंड ऑफ 11 एक मिनट होल्ड करना देवेश, 1 मिनट हाँ, होल्ड करना। लेट मी जॉइन बैक फ्रॉम द अनदर हाँ देवेश, अब बताओ। अपन रेवेन्यू की बात कर रहे थे। रेवेन्यू में ये कह रहा था कि मैं जीएसटीआर 1 भर रहा हूँ। जीएसटीआर 1 भरने की मेरी ड्यू डेट है 11th ऑफ नेक्स्ट मंथ। तो आज मैं समझूं, मैं जैसे ही मार्च मेरा ईयर एंड करता हूँ, उसके 11th ऑफ द नेक्स्ट मंथ के अंदर मेरी सेल्स तो वहां पे ही फ्रीज हो गई। उसके अलावा मैं और कोई एसएच बिल्स वगैरह जो मैं अलग से बनाना चाहूँ मार्च की, वो और नहीं बना पाऊंगा। मैक्स टू मैक्स जो मेरे पास टाइम रह जाता है पेमेंट का, वो रहता है 3B का। तो आजकल वैसे भी गवर्नमेंट ने स्ट्रिक्टली मैंडेट कर रखा है कि आपका जीएसटीआर 1 और 3B इन रिकंसिलिएशन चलना चाहिए। तो जितनी भी मेरी सेल्स है वो मेरी मैक्स टू मैक्स 11th या बाय द एंड ऑफ 20th ऑफ द नेक्स्ट मंथ क्लोज हो जाती है। तो एक रिकंसिलिएशन मेरा सेल्स का विद जीएसटीआर 1 एंड 3B मैंडेटरी हो गया है एक तरीके से ऑडिट करते वक्त, क्योंकि ये जो इन्फॉर्मेशन है आजकल आप लोगों को पता होगा कि टैक्स ऑडिट इन्फॉर्मेशन करके भी एक अलग से मेरा जो 26AS निकलता था, वैसे अलग से फॉर्मेट निकलने लग गया है रिटर्न भरते वक्त। तो उसमें ये सारी डिटेल्स उसके अंदर आती है। तो इन केस मेरी सेल्स वगैरह अगर वहां से रिकंसाइल नहीं होगी, तो मेरे पास बहुत ज्यादा चांसेस होते हैं कि नोटिसेस आ जाए। दूसरी बात, अगर मैं दूसरी डेबिट साइड की बात करूं, पीएनएल के अंदर जितने भी मेरे एक्सपेंसेस हैं, वो कहीं ना कहीं किसी ना किसी तरीके से मेरे जीएसटी के अंदर कवर्ड ऐसे हो जाते हैं कि मेरे जो भी मुझे इनपुट इन केस अगर मुझे लेनी है, तो वो मेरे 2B या 2A के अंदर दिखनी चाहिए, और उसके बाद ही मैं वो इनपुट ले सकता हूँ। वो मैंडेटरी कर दिया है गवर्नमेंट ने 1 जनवरी से। तो जो भी मेरे एक्सपेंसेस है वो एक तरीके से रिकंसाइल हो रहे हैं। हाँ भाई, इसमें जीएसटी दिया गया है, वो मुझे पोर्टल पे भी दिख रहा है, और वही एक्सपेंसेस मैंने क्लेम करे हैं और उन्हीं की बेसिस पे मैंने इनपुट क्लेम करी है। तो पीएनएल एक तरीके से मेरा मोटा मोटी 20 तारीख तक फ्रीज हो जाता है आज की डेट में। प्लस अब अपन आगे मूविंग फॉरवर्ड बात करें तो 1 अप्रैल 2022 से तो ज्यादातर चीजें मेरी ये ई इनवॉइसिंग के लिए फॉल कर जाते हैं। जिनका भी टर्नओवर 50 करोड़ से ऊपर है, उनको ई इनवॉइसिंग मैंडेटरी हो गई है, तो मैं वो भी नहीं ले सकता।
हेलो, हाँ हाँ करेक्ट। हाँ, जो मेरी इनवॉइसिंग मैंडेटरी हो गई है, तो मैं कोई और बिल भी अलग से अब तो मैं नहीं बना पाऊंगा एज ऑन 31 मार्च क्लियर होते ही। क्योंकि तो इस इनवॉइस तो वजह आपको उसी दिन करना होता है। से सेम डे करना होता है, मेरे पास टाइम और लिमिट ही नहीं है उसके, सेम डे करना होता है। बाकी मैं बात करूं जो मेरे गुड्स मैन्युफैक्चरिंग एंटिटीज हैं जिसके अंदर मेरे गुड्स वाली चीज है, उसके अंदर आजकल ई वे बिल वैसे ही मैंडेटरी हो रखा है 1,50,000 50,000 से ऊपर वाली कैटेगरी के ऊपर। तो गुड्स का ट्रांसपोर्टेशन है, मटेरियल एंड ट्रांजिट है, वो भी आज की डेट में एक तरीके से गवर्नमेंट ने सब चीजों पे धीरे धीरे करके रेस्ट्रिक्शंस लगा दिए कि जो पहले होता था कि भाई हम ऑडिट कराते कराते पता लगा नहीं मुझे टर्नओवर ज्यादा करना है या कुछ करना है, तो बिल्स बाद में बना देते थे या बोल देते थे हम बिल डालना रह गया, वो रह गया। वो सारी चीजें बहुत मिनिमाइज हो चुकी है आज की तारीख में जीएसटी आने की वजह से। तो जैसे जीएसटी आने की वजह से चीजें रेस्ट्रिक्शंस आए हैं और मिनिमाइज हुई है, उसी तरीके से जीएसटी का इंपॉर्टेंस ड्यूरिंग द टाइम ऑफ ऑडिट और जीएसटी के जो भी रिटर्न्स हैं, जो भी डेटा मैं जीएसटी पोर्टल पे डाल रहा हूँ या जो डेटा मुझे रिफ्लेक्ट होके दिख रहा है जीएसटी पोर्टल पे, उन सबका रिकंसिलेशन मेरे पीएनएल के साथ और मेरे बैलेंस शीट आइटम्स के साथ आज की तारीख में बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट हो चुका है। तो अपन को ये जो भी प्रेजेंटेशन अभी इन दोनों ने दिया, वो उन्होंने सबने यही समझाया है कि पीएनएल का आप देखोगे हर एक आइटम कहीं ना कहीं किसी तरीके से जीएसटी से लिंक्ड है। सिमिलरली मेरे बैलेंस शीट के आइटम्स में बात करूं, बैलेंस शीट के आइटम्स में जो मेरे एडवांसेस टू सप्लायर्स खड़े हुए हैं या फॉर एग्जांपल मेरी पुरानी एलडीज या रिटेंशंस मनी खड़े हुए हैं, तो उन सब का एजिंग और वो सब इंपॉर्टेंट हो जाता है। क्योंकि आज कोई एलडी खड़ी हुई मेरी बैलेंस शीट में, वो बोलता हूँ पुरानी है, तो जैसे ही मैं उसे क्रेडिट करके पीएनएल में लेके जाऊंगा मेरा जीएसटी इंप्लीकेशन आ जाता है, तो अगेन मेरी जीएसटीआर की जो रिटर्न्स है वो हिट होती है। तो अब जैसे, हाँ सर आप कुछ कह रहे थे? नहीं नहीं, हाँ, हम तो सुन तो रहे थे। तो इस वजह से ये जो जीएसटी ड्यूरिंग द टाइम ऑफ ऑडिट या ऑडिट और जीएसटी एक तरीके से आजकल पैरेलल हो गए हैं, मुझे दोनों को इन हैंड साथ टू साथ रिकंसाइल करते हुए लेते हुए चलना बहुत जरूरी हो गया। सर बस मैं यही बोल रहा था, मैं यही समराइज करके यही बताना। So I think Devesh has rightly concluded that how important GST aspect is there when we are auditing. और ये जीएसटी की वजह से बहुत सारा, क्योंकि जैसे देवेश बता रहे ना कि ई इनवॉइसिंग की वजह से आपका 31 मार्च तक जिस दिन आपने माल सप्लाई किया, गुड सप्लाई की, उसी दिन आपको इनवॉइस करना, ठीक है। तो पहले जब हम लोग आर्टिकल थे और हम लोग पिछले 10 साल से जो भी लोग ऑडिट कर रहे हैं 15 साल से, तो क्या है ना कि कोई इनवॉइस मान लो अभी इश्यू नहीं किया तो वो 2 महीने बाद भी इश्यू हो जाता है। ऐसा भी एक प्रैक्टिस जो है वो जीएसटी के पहले था, बट अब जीएसटी में ये सब इस तरीके के प्रोविजन जो आए हैं, तो ये सारी चीजें जो है वो इनिशिएट करनी होती है क्लाइंट को, और अगर नहीं करेंगे तो देन देयर आर पेनल प्रोविजंस। सिमिलरली एक्सपेंस और ये GSTR1 ये सब आपको महीने की 10 तारीख 15 तारीख जो भी रिलेवेंट डेट्स है, उस डेट्स पे आपको सबको हाथों हाथ हर महीने फाइल करना है। तो एक्चुअल में देखा जाए तो बुक्स ऑफ अकाउंट्स तो आपके 31 मार्च होते ही विदिन 10-15 दिन पूरे के पूरे बुक्स ऑफ अकाउंट तैयार हो जाने चाहिए। ये सिचुएशन धीरे धीरे बिजनेसेस को है वो लेकर आनी पड़ेगी। अगर जो तैयार नहीं होंगे ना 15 दिन में 20 दिन में, तो इसका मतलब वो कहीं ना कहीं उसके यहाँ पे लेथार्जिक पन है कि भाई ये काम नहीं हो रहा, बिकॉज दे आर नॉट फॉलोइंग दी जीएसटी रिक्वायरमेंट, जीएसटी compliances. So we need to be very cautious while auditing the financial statement, particularly from GST perspective. We can conclude here so far as presentation is concerned. और इन दोनों के कुछ व्यूज हैं, इनको कैसा लगा प्रेजेंटेशन बनाते हुए, they can share with you all, with all the new batches.